أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الوجود من العدم وجائل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم ونشكره على مسائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانی کرے. جی شروع کرتے ہیں سورت ہود اور ہے 12واں پارہ. سورہ ہود کی ہم کریں گے آیت نمبر 17 سے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. افمن کان علی بینہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا بھلا وہ شخص جو ایک بینہ پہ ہو. بینہ کہتے ہیں واضح روشن دلیل کو. کیا مراد ہوئی؟ یعنی قلب سلیم ہو اس کے پاس. ہر بچہ نور فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. جو بچے ہوتے ہیں انہیں دیکھیں ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے. خاص وقت کے بعد وہ شریعت کے مکلف ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے تو ان کا قلب سلیم ہے. ٹھیک ہے. یا وہ ایک نور فطرت پہ پیدا ہوئے ہیں، صحیح چیزوں کو صحیح اینگل سے دیکھتے ہیں. پھر ہم آگے سے تربیت کرتے ہیں، ماحول والدین بدلتے ہیں ان کو. تو کیا بھلا وہ شخص جو ایک واضح دلیل پہ ہو اپنے رب کی طرف سے اور اس کے پیچھے آتا ہو ایک گواہ. ایک گواہ کون؟ یعنی کوئی بچہ ہے قلب سلیم کے ساتھ پیدا ہوا ہے یا کوئی انسان ہے. اب جنرلی کسی اڈلٹ کی بات کر لیں، اس کا قلب جو ہے وہ سلیم ہے اور اس نے قرآن سنا. شاہد کا مطلب قرآن بھی ہو سکتا ہے. مکی ماحول میں لے آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے، تو جن لوگوں کی فطرت سلیم تھی وہ ایمان لے آئے. جن کی فطرت میں تھا ہی، جو انٹرنلی لوگ اچھے ہی نہیں تھے، جن میں حسد تھے، تکبر تھے، جو عام لوگوں کے ساتھ عام معاملات میں بھی اپنی بڑائی کو اوپر رکھا کرتے تھے، ظالم قسم کے لوگ تھے، انہیں قرآن نے بھی اثر نہیں کہا. تو وہ جو شاہد آ رہا ہے نا، وہ یتلو شاہد من، کہ ایک گواہ اللہ کی طرف سے ان پہ گواہی دیتا ہے. یہ قرآن سنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا یا بعد میں کوئی قرآن پڑھتا ہے قلب سلیم والا ہے، تو وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتا. لیکن جس کا قلب سلیم ہے وہ ایک ایک دفعہ میں سن کے بھی ایمان لے آئے. ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پھر کون سی کتاب تھی جس کے ساتھ یہ سیم معاملہ تھا؟ وہ تھی تورات. اولئک یؤمنون بھی، تورات کتاب موسیٰ رہنما اور رحمت تھی. اولئک یؤمنون بھی، یہی لوگ ہیں ایمان رکھتے ہیں اس پر. ٹھیک ہے. تو جو علی بینہ پہ ہے وہ ایمان لے آئے گا. اس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے. اور جو علی بینہ جس کا قلب سلیم نہیں ہے، اس کے آگے آپ وہ ہوتا ہے نا، کبھی کبھی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، کسی کو سمجھانے میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں. اور یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. کوئی ہمیں کچھ ایسا سمجھاتا ہوگا تو وہ سوچتا ہوگا یہ ہم اتنی دفعہ ایک بات بتائیے اور یہ عمل نہیں کرتے اس پہ، تو ایسا لگتا ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں. تو عمل اعمال میں بھی ہوتا ہے. یہاں تو ایمان لانے کی بات ہے. وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. گروہوں میں سے کون سے گروہ؟ اہل کتاب ہوں یعنی یہودی نصرانی ہو یا مشرک ہو. تو قرآن سے جو بھی کفر کرے گا فالنار موعدہ، تو آگ اس کا وعدہ ہے. فلا تکو فی مریۃ من، پس تم نہ کسی شک میں ہونا اس سے، یعنی اس خبر کے بارے میں. قرآن حق ہے، قرآن کے بارے میں اور قرآن میں جو بات نازل ہو رہی ہے اس بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے.
इन्नहुल हक, बेशक वो हक है तेरे रब की तरफ से, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। सूरह हूद आयत 18। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, और कौन ज्यादा बड़ा जालिम है इस शख्स से जो घड़ ले अल्लाह पर झूठ। यही लोग पेश किए जाएंगे अपने रब पर और कहेंगे गवाह। कौन से गवाह? हर शख्स जब पेश होगा अल्लाह के आगे तो किरामन कातिबीन हमारे गवाह हैं। फिर अगर उम्मत पेश हो रही है तो प्रॉफिट्स गवाह हैं उम्मतों के ऊपर। क्या कहेंगे गवाह? हा उला इल्लदीना कज़बू अला रब्बिहिम, ये हैं वो लोग जिन्होंने झूठ बोला अपने रब पर। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, खबरदार अल्लाह की लानत है जालिमों के ऊपर। आयत नंबर 19। अल्लदीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, ये वो लोग हैं जो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से। वह यबगूनहा इवजा, और तलाश करते हैं इसमें टेढ़ापन, और वो आखिरत के इनकारी हैं। यही तीन चीजें मक्का वालों में मौजूद थी, कुफार मक्का में। उलाइक लम यकूनु मुअज्जिजीन फिल अर्द, यही लोग हैं ना वो हुए आजिज करने वाले जमीन में। किसको? अल्लाह को या पैगंबर को आजिज तो नहीं कर सके ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कितनी चालें चली, तो क्या इस्लाम रुक गया? नहीं, आजिज तो नहीं कर सके, इस्लाम ने तो गलबा पाया। वमा कान लहुम मिन दुनिल्लाहि मिन औलिया, और नहीं इनके लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार। दुगना किया जाएगा इनके लिए अजाब, और ना थे वो इस्तिताअत रखते सुनने की। इस्तिताअत तो हर कोई रखता है सुनने की, दिलचस्पी नहीं रखते थे। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था कि शौक क्या चीज होती है, इसी तरह शौक की तरह दिलचस्पी भी एक चीज होती है। हमारे इंटरेस्ट क्या है, हम जिन चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो चीजें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों में हम ये चीज बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। बच्चों को जिस चीज का इंटरेस्ट होता है वो क्या करते हैं, उसको वो खुद ही अडॉप्ट कर लेते हैं। ये जो जितनी ये इंडस्ट्री टिकी हुई है, कमर्शियल जो बनते हैं सारे, जो हमारा डेटा ये मोबाइल से उठाते हैं और हमारे डिवाइसेस से डेटा उठाते हैं कि ये बंदा कौन सी वेबसाइट्स पे ज्यादा जाता है, किन चीजों को ज्यादा लाइक करता है। ये डेटा उठा के इंटरेस्ट ही तो देखते हैं। हमसे कभी फेसबुक वाले, व्हाट्सएप वाले कोई पैसे लेते हैं? कभी लिए उन्होंने पैसे? हम कितनी एप्लीकेशंस उनकी यूज करते हैं, कभी उन्होंने लिया है हमसे $1 भी? कभी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो हमारा पूरी हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। हम जो कहते हैं ना नामा अमाल हमारा बनना है, हम इसकी निशानी दुनिया में देख सकते हैं। हमारे पूरे पूरे नामा अमाल मौजूद है उनके पास। किस वीडियो को लाइक किया है, किस तरह की चीजें ढूंढती, रात के किस हिस्से में क्या चीज देखते हैं, दिन के किस हिस्से में ये बंदा किस चीज को प्रेफर करता है, सब कुछ पता है उनके पास। ये डेटा ये इंडस्ट्रीज खरीदती हैं। जब हम टर्म्स एंड कंडीशन पे टिक करते हैं ना, जब किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो बकायदा ये एक स्कैंडल है, इसके ऊपर इतनी दफा बात हो चुकी है कि टर्म्स एंड कंडीशंस इतने मुश्किल क्यों होते हैं। आपने देखा कितना लंबा पेज होता है, मुश्किल अल्फाज होते हैं, कोई उसको नहीं पढ़ता। वहां पे ये लिखी भी होती है शर्त, वहां पे ये ब्रांच मौजूद होती है कि आप हमारा डेटा यूज कर सकते हैं। वह वहां से हमारी पूरी पर्सनालिटी पकड़ते हैं, वो वहां से हमारे इंटरेस्ट निकालते हैं और उसके मुताबिक फिर हमें इश्तहार देते हैं, उसके मुताबिक हमें वीडियो देते हैं, उसके मुताबिक हमें लिंक देते हैं। हत्ता कि इस पे बकायदा केस तक चल चुके हैं कि वो ये तक मालूम कर लेते हैं कि जब पॉलिटिक्स के रेफरेंस से मैं आपको बता रही हूँ कि जब इंतखाबात होने लगे डोनाल्ड ट्रंप के वक्त, पूरा ये पूरा स्कैंडल मौजूद है। देखिएगा जाके किस तरह से डेटा चुराया गया, कितनी मिलियंस लोगों का खरीदा गया। और फिर देखा गया कि ट्रम्प को लेके, मतलब किसी भी बंदे को रख लें आप, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, उसको लेके कितने लोग ऐसे हैं कि ये 50-50 हैं। फिर उन लोगों को बाकायदा इस तरह की वीडियोस भेजी गई हैं, उनके सर्च बार में आती थी, जिनसे उसका उनका रुझान आहिस्ता आहिस्ता उस पॉलिटिकल लीडर की तरफ हो जाता है। तो ये इंटरेस्ट, व कानू माँ कानू यस्ततीउन समअ, वो इस्तिताअत नहीं रखते थे सुनने की, और उस इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे, उनका कोई ध्यान ही नहीं था। वमा कानू युबसिरून, और ना वो देखते थे। उलाइक लदीना खसिरू, आयत नंबर 21, ही वो लोग इन्होंने खसारे में डाला अपनी जानों को, और गुम हो गए इनसे जो कुछ थे वो घड़ा करते। नहीं कोई शक, बेशक वो आखिरत में वही है जो सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले हैं। सूरह हूद आयत 23। इन लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अमल किए अच्छे और आजिजी की अपने रब की तरफ। उलाइक अस्हाबुल जन्ना, यही लोग हैं जो जन्नत वाले हैं। हम फीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। आयत 24। मसलुल फरीकैन कल अमा वल असम, ये दो ग्रुप पीछे कंसीडर हुए, डिस्कस हुए। अब इनके हवाले से बात हो रही। मिसाल इन दो ग्रोह की, मानिंद अंधे और बहरे के हैं। और दूसरा कौन सा ग्रोह है? वल बसीरी व समीअ, और देखने वाला और सुनने वाला। तो मोमिन हक को देख रहा है, सुन रहा है, बसीर समी है। और जो कुफर करने वाले हैं, जो इंटरेस्ट नहीं लेते, वो अंधे और बहरे की तरह है। हल यस्तवियान, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? क्यों नहीं बराबर हो सकते? मिसाल में, क्योंकि जो आमाल होंगे उसकी बुनियाद पे नतीजा है। जब आमाल मुख्तलिफ है तो नतीजा भी मुख्तलिफ है। सिंपल सी बात है, ये दुनिया का भी उसूल है, तो आखिरत में भी यही उसूल है। अफला तज़क्करून, क्या भला तुम नसीहत नहीं पकड़ते? आज नंबर 25। वलक़द अरसलना नूहन, यहाँ से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू हो रहा है। यहाँ सूरह हूद में प्रॉफिट्स के किस्से आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ ना कुछ
पढ़ कर आ चुके हैं और कुछ ना कुछ हम जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। और अलबत्ता तहकीक भेजा हमने नूह को इसकी कौम की तरफ, उसने कहा बेशक मैं तुम्हारे लिए खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, ये कि तुम ना करो इबादत मगर अल्लाह की, बेशक मैं डरता हूँ तुम पर अजाब से, यौमिन अलीम दर्दनाक दिन के। फ़क़ाल अल मलअु लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमी 27, तो कहा सरदारों ने, इन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया इसकी कौम में से, मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, नहीं हम देखते आपको एक इंसान मगर अपने जैसा, वमा नराका तबअका इल्ला लदीना हुम, और नहीं हम देखते आपको कि पैरवी करते हैं तुम्हारी मगर वो लोग जो हम में हकीर और जलील हैं, जो हमें देखने में बहुत छोटे हैं, ठीक है। वमा नरा लकुम अलैना मिन फضल, और नहीं हम देखते तुम्हारे लिए अपने ऊपर कोई फजल, बल नज़ुन्नुकुम कादिबीन, बल्कि हम तुम्हें झूठा समझते हैं, तुम्हारा नबूवत का दावा ही झूठा है, तुमने झूठा दावा किया है, तुम हमारे जैसे एक इंसान हो, तुम्हें फॉलो करने वाले यही माशरे के गरीब तबका है। ये सेम वो चीजें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुफारे मक्का ने भी कही, और यहाँ पे ये सारे किस्से सुना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को इस बात दिया जा रहा है, ठीक है। काला या कौम या तुम, आयत नंबर 29, इसने कहा, प्रॉफिट ने कहा, ए मेरी कौम क्या देखा तुमने अगर मैं हूँ एक दलील पर अपने रब की तरफ से, और इसने अता की मुझको रहमत अपनी जनाब से, उम्मियत अलैकुम, तो वो छुपाई गई है तुमसे, यानी तुम देखो मैं रोशन दलील पे हूँ, मुझे नबूवत दी गई है, तो तुमसे मेरी नबूवत पोशीदा क्यों है? इसलिए पोशीदा है क्योंकि तुम जाहिर बीन हो, तुम ऊपर ऊपर देखते हो, तुम सिर्फ जाहिर को देखते हो, वरना तुम्हें मेरी नबूवत नजर आती जैसे माशरे के गरीब लोगों को नजर आ गई, जिनके दिल क्या थे, वही बात जो पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं, कल्बे सलीम। वो एक रूल अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि देखो कल्बे सलीम होगा जब तुम शाहिद बन के गवाही दोगे, कुरान सुनाओगे, ईमान ले आएंगे। जो ईमान नहीं ला रहे असल में वो लोग ही गड़बड़ है। फिर इस तरह का एक तमहीदी आयत उसको समझ लें, एक तमहीद बांधने के बाद फिर ये भी बताया गया कि इंटरेस्ट नहीं है, असल मसला ये है कि इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों का। फिर अब देखिए उसी सिनेरियो के हवाले से उसकी एक्सप्लेनेशन चलेगी, सारे वाकयात में उन्हीं लोगों की मिसालें दी जाएंगी। अनुल्जिमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिमून, क्या मैं तुम पर थोप दूं इसको जबकि तुम इसको नापसंद करने वाले हो? यानी मैं कैसे दिखाऊं तुमको ये हकीकत के हकीकतन में प्रॉफिट हूँ, जो मैं कलाम लाया हूँ अल्लाह की तरफ से, जबकि तुम कारिहून, तुम पसंद ही नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए या आप ऐसे हो खुद, आपका इंटरेस्ट नहीं हो किसी ऐसी जगह जाने में जहां आप नहीं जाना चाहते, आपको कोई जबरदस्ती ले जाए, वो नताइज आप उसको निकाल कर नहीं दे सकते। आपका सीधा सीधा सा काम होगा, जैसे किसी गैदरिंग, जैसे मैथ्स की क्लास में बैठ के लोगों को जमाइयां आती हैं, लेकिन जिन लोगों का मैथ्स में इंटरेस्ट होता है एक जमाई नहीं लेते। यही हाल नमाज का है, जो बहुत खुशू से नमाज पढ़ते हैं, मजा ले वो जमाई लेने नमाज में, और लेने वाले सजदों में भी जमाई ले रहे होते हैं, जहां पे अल्लाह से आप बड़ा करीब होते हैं। तो ये बहुत काउंटेबल चीज है कि जबरदस्ती थोप दें हम तुम पर, अनुलजिमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून, जबकि तुम उस चीज को नापसंद करते हो। तो इसीलिए हमने पहले भी बात की इंटरेस्ट की, फिर हम उस सबसे पहले हमने शौक की बात की कल, आज हमने इंटरेस्ट की बात की। तो मैंने कल भी यही बात पॉइंट इसको हाईलाइट किया था कि दुआएं ऐसी करें, या अल्लाह हमारी दिलचस्पी अच्छी चीजों में कर दे, क्योंकि ये चीज बहुत मुश्किल है हकीकतन, कि आपका इंटरेस्ट ना हो किसी दावा के काम में जाने का या किसी दर्स में जाने का, आप दोस्त के साथ चली तो गई है, वो गौर से सुन रही है, आप जमाइयां ले रही हैं, तो ये दुआओं का हिस्सा होना चाहिए। अल्लाह हमारे और हमें, हमारी औलाद को इबादत का शौक दे, नमाज को आंखों की ठंडक बना दे हम सबके लिए, कुरान को सीने का नूर बना दे। तो ये अच्छे शौक मांगने चाहिए। आयत नंबर 29, वह या कौमी हो, मेरी कौम, मैं नहीं सवाल करता तुमसे इस पर, यानी इस तबलीग पर किसी माल का, मेरा अजर अल्लाह के जिम्मे है, और नहीं हूं मैं दूर करने वाला इन लोगों को जो ईमान लाए हैं, बेशक वो मुलाकात करने वाले हैं अपने रब से, लेकिन मैं देखता हूँ तुमको एक कौम कि तुम जहालत बरत रही हो। वह या कौमी, और मेरी कौम, कौन मदद करेगा मेरी अल्लाह के मुकाबले में अगर मैंने दूर फेंक दिया इनको, यानी ये जो गरीब तबका है जो मुश्किल हालात में ईमान ले आए हैं। अफला तदक्करून, क्या भला तुम नसीहत नहीं पकड़ते? सेम डिमांड्स कुफारे मक्का जो बड़े बड़े सरदार थे उनकी भी थी। वला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, आयत नंबर 31, और नहीं मैं कहता तुमको मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं जानता हूँ गैब को, और ना मैं कहता हूँ कि मैं एक फरिश्ता हूँ, और ना मैं कहता हूँ इन लोगों को जिन्हें हकीर समझती हैं तुम्हारी निगाहें, हरगिज नहीं देगा कि इनको अल्लाह कोई भलाई, यानी मैं नहीं कह रहा, ये तुम कह रहे हो। देखिए ये बात जहन्नुम में साबिक जो आराफ वाले हैं वो भी कहेंगे ना जहन्नुमियों से, कि जो जन्नत में लोग नजर आ रहे हैं इनके बारे में तुम कहते थे कि अल्लाह इन्हें कोई भलाई नहीं देगा, देखो आज जन्नत में बैठे। तो यही वाला यहाँ पे भी है, लन युतियहुमुल्लाहु खैरा, कि तुम ये जो गरीब माशरे के लोग हैं इनके बारे में कहते हो कि अल्लाह इनको कोई खैर नहीं देगा, तो मैं ऐसा नहीं कहता। प्रॉफिट बकायदा अपनी हुज्जत तमाम कर रहा है। अल्लाहु आलमु बिमा फी अनफुसिहिम, अल्लाह खूब जानता है इसको जो इनके नफ्सों में है। इन्नी इज़्ज़ल मिनज़ ज़ालिमीन, अगर मैं ऐसा कहूँ तो मैं तो बड़े जालिमों में से हो जाऊंगा। आयत 32,
قالوا या नूह قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين। उन्होंने कहा, ए नूह, तहकीक तूने झगड़ा किया हमसे, बहुत कसरत से तूने झगड़ा किया हमसे, बस ले आ हमारे पास इसको जिसकी तू धमकी देता है, अगर तू सच्चों में से है। मजाक भी उड़ाना कह सकते हैं, गैर संजीदा गुफ्तगू कह सकते हैं कि हमसे तू बहुत बहसें करता रहता है, बहुत हो गई, बस चलो अजाब ले आओ जिसकी तुम धमकी देते हो। आयत 33, क़ाल इन्नमा यातीकुम बिहिल्लाह, कहा बेशक लाएगा तुम्हारे पास इसको अल्लाह, अगर वो चाहे, और नहीं हो तुम आजिज करने वाले, आजिज अजाब को रोक नहीं सकोगे, आना होगा, अल्लाह ने लाना होगा तो फिर रोक नहीं पाओगे। वला यनफउकुम नुस्खी इन अरदतुम अन अंसह लकुम, और नहीं फायदा दे सकती तुमको मेरी खैर ख्वाही अगर मैं चाहूं कि मैं खैर ख्वाही करूं तुम्हारी। इनका अल्लाह युरीदु अन युग़वियकुम, और अगर है अल्लाह इरादा रखता है कि भटका दे तुमको, हुआ रब्बुकुम, वो तुम्हारा रब है, व इलैहि तुरजऊन, और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। नहीं फिर अल्लाह बताएगा तुमने क्या किया यहाँ। हम यकूलून अफ्तराह, क्या वो कहते हैं इसने घर लिया इसको, कौम नूह कह रही है, या तो जो भी कलाम था जो शरीयत उन पे उतरी, या कुफारे मक्का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं। कुल इन इफ्तरैतहु फअलैया इजरामी, कह दीजिए अगर मैंने घर रखा है इसको तो मेरे जिम्मे मेरा गुनाह है, और मैं बरी जिम्मा हूँ उससे जो तुम जुर्म करते हो। वह उहिया इला नूह, और वही की गई नूह अलैहिस्सलाम की तरफ कि बेशक वो लोग हरगिज़ ईमान ना लाएंगे तेरी कौम में से मगर जो ईमान ला चुका। 950 साल का समर है ये, 950 साल तबलीग करने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया जा रहा है कि जो ईमान लाना था वो ला चुका, अब इनका अजाब का वक्त आ चुका। फला तब्तइस बिमा कानू यफअलून, तो ना तुम गम करो बवजह उसके जो वो करते थे, यानी अब इनकी शामत आने वाली है, और क्योंकि तुम नरम दिल हो, प्रॉफिट, और प्रॉफिट एक बाप की तरह होता है, तो बस अब गम ना करो, अब इनकी शामत आई, अब आई कि तब आई। आयत 37, वस्नइल फुल्क, और बना ले एक कश्ती हमारी निगाहों के सामने और हमारी वही के मुताबिक, यानी सारी इंस्ट्रक्शन अल्लाह ने दी वही के मुताबिक आना है ना। वला तुखातिबनी फिल लदीना ज़लमू, और तुम मुझसे मुखातिब ना होना इन लोगों के बारे में जिन्होंने जुल्म किया, यानी जिन पर अजाब आएगा उनकी फिर सिफारिश ना करना, मुराद ये है। इन्नहुम मुगरकून, बेशक वो गर्क किए जाएंगे। वही यसनाउल फुल्क, और वो बना रहा था कश्ती, और जब कभी गुजरते इस पर सरदार इसकी कौम में से, वो तमस्खर करते इसका। क्या कहते हैं, हजरत नूह को कश्ती बनाते हुए देख के लोग, भाई पहले तो पैगंबर थे अब ये बड़े ही बन गए, अब इनको कारपेंटिंग का शौक हो रहा है। दूसरा क्या कहते हैं, खुशकी पर देखो कश्ती बना रहे हैं, इनको क्या हो गया है कि पानी का तो वहां पानी तो आना था ना, पानी तो नहीं था उस वक्त। कौला, वो कहता है, आपने देखा होगा ना कश्तियां वगैरह शिप वगैरह कहाँ बनते, पीसेज आके वहीं पे असेंबल होते हैं ना, साहिल के ऊपर ही। और फिर क्योंकि इतने शिप को आप कैसे लेकर जाएंगे किसी फैक्ट्री से निकाल के, तो वो साहिलों पे ही बनते हैं, वहीं असेंबल होते हैं, पार्ट्स बनकर आते हैं, और फिर वो वहीं पे जो है समंदर में उतार देते हैं। इन तस्खरु मिन्हा, अगर तुम मजाक उड़ाते हो हमारा तो हम भी मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, जैसे तुम मजाक उड़ाते हो, ये उन कुफार को कहा जा रहा है बदले में। फसौफ तअलमून, पस अनकरीब तुम जान लोगे, कौन है आएगा इसके पास अजाब, रुसवा कर देगा इसको और उतरेगा इस पर अजाब दायमी। आयत नंबर 40, हत्ता इदा जा अमरुना, यहाँ तक कि जब आ गया हुक्म हमारा और जोश मारा तन्नूर ने, तन्नूर में जोश मारा यानी पानी निकला उससे। तन्नूर वैसे कहते हैं जिसमें रोटी लगाई जाती है, इसमें मुख्तलिफ आ रहा है, मुफस्सरीन ने बयान किए। एक पत्थर है जिसका नाम तन्नूर था जिससे पानी निकला, बाज ने कहा कि जो हजरत नूह की वाइफ थी वहां पे वो जो रोटियां लगा दी थी, कि सॉरी हजरत हव्वा जो थी, हजरत हव्वा का तन्नूर था जो बाद में हजरत नूह के पास आ गया था, उसमें से पानी निकला। बहरहाल ये जगह है कोई जहां से फारत तन्नूर, तन्नूर ने जोश मारा। कुल नहमिल फीहा, कहा हमने सवार हो जाओ इसमें, हर सवार कर इसमें हर चीज से दो जोड़े, यानी दो दो नर और दो दो मादा, ताकि अगर एक नर मर जाए तो दूसरी जोड़े का नर मौजूद हो, या एक मादा मर जाए, दो दो। वह अहला का, और अपने अहलो अयाल को, सिवाय इसके जिसके बारे में गुजर चुकी बात इस पर, यानी उनके बेटा और जो एक बेटा और बीवी जो थे वो ईमान वाले नहीं थे। अलकौल व मन आमना, और उनको सवार करें जो ईमान ले आए। वमा आमना माहू इल्ला कलील, और ना ईमान लाए इसके साथ मगर बहुत थोड़े, कहा जाता है तकरीबन 80 के करीब लोग ईमान लाए। वक़ाल अरकबू फीहा, और इसने कहा सवार हो जाओ इसमें, अल्लाह के नाम के साथ चलना है इसका और ठहरना है इसका। इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, बेशक मेरा रब अलबत्ता गफूरुर रहीम है। आयत 42, वही है तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, और वो चल रही थी इनके साथ कश्ती पहाड़ों की तरह, मतलब मौजों में ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ की बहुत बड़ी कश्ती होगी। वनादा नूह, और पुकारा नूह ने अपने बेटे को, और वो था किनारे पे, ए मेरे बेटे, या बुनैयर कम माना, ए मेरे बेटे मेरे साथ सवार हो जाओ, वला तकुम मअल काफिरीन, और ना तुम हो जाओ काफिरों में से। काला साआवी इला जबल, बेटा बोला अनकरीब मैं एक पहाड़ की तरफ पनाह ले लूंगा, वो मुझे बचा लेगा पानी से। काला ला आसिम अल यौम, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बचाने वाला नहीं आज अल्लाह के हुक्म से मगर जिस पर वो खुद रहम करे। वहाला बैनहुमल मौज, और हायल हो गई दोनों के दरमियान एक मौज, मौज तो हो गया वो गर्क होने वालों में से। ठीक है, बात अभी जारी ही थी, वहाला के बीच में एक लहर आ गई बड़ी सी, और
डूब गया वो। वकीला, और कह दिया गया कि ए जमीन निगल जा अपना पानी, और ए आसमान थम जा, और खुश कर दिया गया पानी, और फैसला कर दिया गया मामले का। और आ ठहरी कश्ती जूदी पर, जूदी एक पहाड़ का नाम है। वकीला, और कह दिया गया बुअदल लिकौम लिलकौम, दूरी हुई कौम, जालिम कौम के लिए। अब ये बाइबल में जो बयान है, या आप देखिए उन्होंने एक मूवी भी बनाई है, उसमें बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया है कि जमीन फटी है और उससे जैसे प्रेशर से मोटी मोटी सतून नहीं होते, इस तरह से पानी निकला है, और आसमान से भी लगातार पानी बरसा है। तो अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि, लेकिन इसमें साथ साथ उनके जो अपने बाइबल के कॉन्सेप्ट हैं, जो शैतान ने हजरत हव्वा को बहकाया था, तो इस तरह का मूवी देखे तो आपने, क्योंकि कुरान का पढ़ा नहीं होता, तो आप उसी चीज को सच समझने लगते हैं। जिन्होंने डिटेल से कुरान पढ़ा हुआ है, खास करके वाकयात जो कसस हैं, और फिर उनको इस्लाम का जो ट्रू वर्जन है, जो वाकई रियल वर्जन है, वो पता है, तो वो मूवी देख के कुछ ठीक आइडिया कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा, तो मैं नहीं समझती उन्हें देखनी चाहिए। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये तूफान नूह को बड़ा अच्छा सा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। हजरत नूह पे काफी मूवीज बनी है, बहरहाल मैंने अभी एक रिसेंटली देखी है। आयत 45 देखिए, वनादा नूह, और पुकारा नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को, फिर कहा ए मेरे रब, बेशक मेरा बेटा मेरे घर वालों में से था, और बेशक तेरा वादा सच्चा है, और तू बेहतरीन फैसला करने वाला है सब फैसला करने वालों में। कौला या नूह, फरमाया ए नूह, बेशक वो तेरे घर वालों में से नहीं था, बेशक वो एक अमल था नापाक। अपने बेटे के लिए वो एक तरह से सिफारिश कर रहे हैं ना, कि तूने कहा था अपने अहल, तेरे अहल को बचाऊंगा, तो मेरा बेटा मेरी फैमिली में से था। अहल फैमिली को कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए नूह, वो तेरा अहल नहीं था, तेरे घर वालों में नहीं था, जबकि हालांकि नस्ली बेटे थे वो, नस्ली बेटा था, मगर अमल की वजह से, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, वो एक नापाक अमल था, यानी इसके अमल ही बिगड़े हुए थे। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, तो ना तुम मुझसे सवाल करो जिसका तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है। इन्नी अईदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, बेशक मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम जाहिलों में से हो जाओगे। 47, कौल रब्बी, उन्होंने कहा ए मेरे रब, इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म, कहने लगे बेशक मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं सवाल करूं तुझसे जिसका मेरे पास कोई इल्म नहीं। यानी ईमान वालों की सिफात होती है, जिससे रोका गया रुक गए। अल्लाह ने कहा सवाल ना करो, तुम्हें कोई इल्म नहीं, मैंने क्यों उसको नहीं बचाया? उन्होंने कहा मैं रुक गया। व इल्ला तगफिर ली, और अगर तू मुझे नहीं बख्शेगा, व तरहमनी, और तू रहम नहीं करेगा मुझ पे, अकुम मिनल खासिरीन, मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। यही रवैया किसका था? हजरत आदम का भी था। आयत 49 47, कीला, पुकारा गया ए नूह, उतर जाओ सलामती के साथ हमारी तरफ से, और बरकतें हो तुझ पर और इन जमातों पर, इनमें से जो तेरे साथ हैं, और कुछ जमातें अनकरीब हम फायदा देंगे इनको, फिर छू लेगा इनको हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब। मसलन क्या है? मुराद ये है कि तुम्हारे साथ जो ईमान वाले आए हैं, इनमें नस्लें चलेंगी आगे, फिर इनमें से भी फिर जो अगर जिनमें बिगाड़ होगा तो फिर उनको अजाब पहुंचेगा। तिलका मिन अंबाइल गईब, ये गैब की खबरों में से है, हम वही कर रहे हैं इनको आपकी तरफ ना, आप जानते थे इनको ना आप और ना आपकी कौम इससे पहले। किससे पहले? कुरान नाजिल होने से पहले। क्योंकि देखिए ये बनी इस्माइल, इस्माइल जो चल रहे हैं, यहाँ तो कोई किताब नहीं है, तौरात नहीं आ रही ना, वहां तो पूरा सिलसिला चल गया। हजरत इस्माइल के साथ हजरत याकूब थे, हजरत याकूब से पूरी नस्ल चली, एक पैगंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वहां तो किताब आ रही है बार बार। ये किस्से उनके लिए ऐसे थे फिंगर टिप्स पे, लेकिन यहाँ अरबों के लिए तो नहीं था ना। तो ये वला कौमों का बिन कबल हाजा फसबिर, बस सब्र करें, बेशक अंजाम तकवा वालों के लिए है। आयत नंबर 50 देखिए, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होगा। व इला आदिन अखाहुम हूदा, और भेजा आद की तरफ इनके भाई हूद को, यानी कौमी भाई थे, दीनी भाई नहीं थे, कौमी भाई थे। काला या कौम, उन्होंने कहा है मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की, नहीं तुम्हारे लिए कोई इला इसके सिवा नहीं, तुम मगर झूठ गढ़ने वाले। कौन सा झूठ? यानी तुम शिरक कर रहे हो, तुम झूठी जिंदगी गुजार रहे हो। भाई या कौम इला असअलकुम अलैहि अजरा, ए मेरी कौम, नहीं मैं सवाल करता तुम पर इस, तुमसे इस पर किसी किस्म के अजर का। मेरा अजर तो अल्लाह के जिम्मे है, उस वो जात जिसने मुझे पैदा किया। और क्या फिर तुम नहीं अकल से काम लेते? अफला ताकिलून, यानी मैं दुनिया नहीं कमा रहा। अगर मैं तुम्हें शिरक छोड़ने को कह रहा हूँ, तो जो जो बंदा झूठा होता है ना, ये जिसका इखलास दुरुस्त नहीं होता, उसके पीछे दुनिया होती है, वो कहीं ना कहीं से दुनिया का फायदा हासिल कर रहा होता है, उसको चाहिए होता है लोगों से। यहाँ वो मेहनत कर रहे हैं, जान मार रहे हैं, और तो बता रहे हैं कि अफला ताकिलून, तुम अकल से काम नहीं लेते, कि मैं तुमसे कोई बेनिफिट्स नहीं ले रहा, मैं तुमसे तुम्हारा माल नहीं ले रहा, हीले बहाने करके तुमसे कोई दुनिया नहीं चाह रहा, तो यकीनन मैं सच बोल रहा हूँ। फिर मेरा तो कोई फायदा नहीं है, तो फिर मैं बेवकूफ तो नहीं है जो मैं मेहनत कर रहा हूँ। भैया कौमी, और ए मेरी कौम, बख्शिश मांगो अपने रब से, फिर तौबा करो इसकी तरफ, वो भेजेगा आसमान को तुम पर मिदरारा, बहुत बरसने वाला बनाकर। तो इस्तिगफार का फायदा आ रहा है यहाँ पे, कि इस्तिगफार करता है बंदा और अल्लाह से रुजू करता है, तो फायदा क्या होता है? मिदरारा, आसमान बरसने वाला, यानी रिस्क में बहुत बरकत हो जाती है। रिस्क की बरकत के लिए इस्तिगफार लाजमी है। अपना नामा अमल बहुत खूबसूरत करना हो ना,
हमारा जो नामा अमाल है ना, जैसे दिल पे धब्बे होते हैं, ऐसे नामा अमाल पे भी धब्बे होते हैं बुरे कामों के। और नामा अमाल रजिस्टर है, नशूरा, पब्लिश कर दिया जाएगा। तो खूबसूरत बुक चाहिए ना हम में से सबको, तो कसरत से इस्तिगफार करें। इस्तिगफार इज लाइक एन इरेजर। जैसे रजिस्टर में कोई चीज हो ना, गंदे क्रॉस किया हुआ फिर ठीक किया हुआ, कभी हम करते हैं ना, ये सारी हमारे अमाल ऐसे ही ऊपर नीचे, कुछ अच्छे कुछ बुरे मिले जुले। इस्तिगफार वो काले डॉट्स मिटाता जाएगा, मिटाता जाएगा, नामा अमाल खूबसूरत हो जाएगा, शाइनी हो जाएगा। वही यजिदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, और ज्यादा देगा तुमको कुव्वत में तुम्हारी कुव्वत के, यानी जिस कुव्वत के तुम मालिक हो, बहुत मजबूत कौन थी जिस्मानी तौर पर, उसको और बढ़ा देगा। तीन कुव्वतें होती हैं, एक होती है जिस्मानी कुव्वत, एक होती है मादी कुव्वत। जिस्म भी मजबूत है, सेहतमंद है, माल दौलत भी बहुत है, एक चीज होती है रूहानी कुव्वत। तो अल्लाह अब इनको रूहानी कुव्वत से नवाजना चाह रहा था। ये दो कुव्वतें इनके पास पहले ही थी। वला ततवल्लौ मुजरिमीन, और ना तुम मुंह फेरो मुजरिम बनकर। कालू याहूदू मा जितना बिबय्यिनतिन वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना, आयत 53। उन्होंने कहा, ए हूद, नहीं तू लाया हमारे पास कोई वाज़िह दलील, और नहीं है हम छोड़ने वाले अपने इलाहों को तेरी बात की वजह से। वमा नहनु लका बिमुमिनीन, और नहीं है हम तेरे लिए ईमान लाने वाले। इन नकूलु इल्ला अतराक बादु आलिहतिना बिसू, हम तो ये कहते हैं कि तेरे साथ हमारे कुछ माबूदों ने बुराई का मामला कर लिया है। यानी तुझ पर अजाब पड़ रहा है, तुझ पर मार पड़ रही है, किसकी? हमारे माबूदों की। ये जो तू बात कर रहा है ना, माबूदों को छोड़ दे। काला इन्नी उशहुदुल्लाह, इसने कहा, पैगंबर कहते हैं, बेशक मैं गवाही देता हूँ अल्लाह की, और तुम गवाह रहो, बेशक मैं बरी जिम्मा हूँ इससे जो तुम शरीक ठहराते हो। यानी मेरा तुम्हारे बुतों से कोई ताल्लुक नहीं है, उनमें कोई ताकत नहीं है कि वो मुझ पे किसी को मार रख सके। मिन दूनी ही, इसके सिवा, बस चाल चलो मेरे खिलाफ सब के सब, फिर ना तुम मुझे मोहलत दो। इन्नी तवक्कल तो अल्लाह, बेशक मैंने तवक्कल किया अल्लाह पर, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। यानी जो करना चाहते हो कर लो, मैंने अल्लाह पर तवक्कल कर लिया। मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिदुम बिनासियतिहा, आयत 56 है ये। नहीं कोई जानदार मगर वो पकड़े हुए है इसकी पेशानी को। यानी अल्लाह का हम पर ऐसा गलबा है, हुआ काहिरुल फौqa इबादी। ये जो हमारा फॉरहेड है ना, बाकायदा देखिए कितने अच्छे अल्फाज हैं, दुआओं में भी आते हैं अल्फाज, कि जैसे पेशानी से आप किसी को पकड़ लेते हैं ना, अपने अंगूठे से और उंगलियों से किसी का माथा पकड़ ले, तो अल्लाह ताला हर एक को इस तरह से पकड़े हुए है। उसकी ताकत ऐसी, जब किसी पेशानी कोई पकड़ लेता है ना मजबूती के साथ, बंदा छुड़ा नहीं सकता उसको। इन्ना रब्बी, बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर है। इन तवल्लौ 57, फिर अगर तुम मुंह फेरते हो तो तहकीक मैंने पहुंचा दिया तुमको जिसके साथ जो मैं भेजा गया हूँ तुम्हारी तरफ, यानी पैगाम पहुंचा दिया। वही तकलीफु रब्बी कौमन गैरकुम, और पीछे लाएगा मेरा रब एक कौम को तुम्हारे अलावा, और ना तुम नुकसान दे सकते होगे इसको कुछ भी, बेशक मेरा रब हर चीज पर निगरान है। यानी अल्लाह का कानून है, एक कौम नहीं मानती तो फिर उसकी जगह दूसरी कौम आ जाती है। कौम की हालत क्या थी? शिर्क थी, बुतों की पूजा करते थे। फिर ये अकायद की भी इनकी दुरुस्तगी करनी थी, तौहीद के हवाले से भी हजरत हूद ने इनको कहा। लेकिन क्या हुआ? नहीं माने तो रद्द अमल क्या हो गया? अजाब। और अजाब आंधी आई थी। सखरा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्यामिन हुसूमा, ये 29वें पारे में आता है। 7 रातें 8 दिन इन पे सख्त शोर वाली ठंडी हवा चलती रही। बहुत मजबूत लोग थे, इनके सर फाड़ दिए उस हवा ने, भेजे बाहर आ गए। जिस्म जैसे कार्टन नहीं होता डब्बा गत्ते का, पैर मारते हैं तो पिचक जाता है, इस तरह से इनकी जिस्म पिचका दी उस हवा ने। अल्लाह अकबर। वलम्मा जा अमरुना, और जब आ गया हमारा फैसला, निजात दी हमने हूद को और इन लोगों को जो ईमान लाए इसके साथ अपनी रहमत के साथ, और निजात दी हमने इनको सख्त अजाब से। वह तिलका आद, और ये आद थे, उन्होंने इनकार किया अपने रब की आयत का और नाफरमानी की इसके रसूल की, और उन्होंने पैरवी की हर जालिम के हुक्म की। वह उत्बिउ फी हादिही दुनिया, वह उत्बिउ फी हादिही दुनिया लाना, और इनके पीछे लगा दिया गया दुनिया में लानत को और कयामत के दिन भी। अला खबरदार, इन्ना आदन कफरू, बेशक आद ने इनकार किया अपने रब का। अला खबरदार, बुअदल लिआदिन कौमिन हूद, दूरी है, लानत है आद के लिए जो कौम हूद थी, अल्लाह की रहमत से दूरी हो गई। आयत नंबर 61 देखिए। व इला थमूद, अब आद में से जो लोग बचे नेक, उनमें से फिर कौम समूद बनी, फिर उनमें भी खराबियां आई, फिर उनमें हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। और तरफ समूद के इनके भाई सौलेह को भेजा, और उन्होंने कहा, है मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं तुम्हारे लिए कोई इलाह अल्लाह के सिवा। इसने पैदा किया तुमको जमीन से और आबाद किया तुमको इसमें, बस बख्शिश मांगो इससे, फिर तौबा करो इसकी तरफ, बेशक मेरा रब करीब है, जवाब देने वाला है। अब इन्होंने देखा था ना हमारे अबाउजदाद पे ऐसा आवाज अजाब आया था, बहुत हवाएं चली थी, तो ये बड़े इन्होंने अकलमंदी दिखाई अपने, तो इन्होंने पहाड़ों के अंदर घर तराशे कि इस तरह का कोई आंधी तूफान आएंगे तो हम अपने पहाड़ों के घर में घुस जाएंगे, बचेंगे। महलात भी बनाए, लेकिन पहाड़ों को तराशा। कौलू या साले, उन्होंने कहा, ए साले, तहकीक तू हमारे दरमियान बड़ा होनहार था इससे पहले, क्या तू हमको रोकता है कि हम इबादत करें जिसकी इबादत करते थे हमारे आबाउजदाद? और बेशक हम, अलबत्ता हम इस चीज के बारे में जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो, यानी तौहीद,
इलैहि मुरीब, इसकी तरफ हम बड़े बेचैन करने वाले शक में। ये वही सेम बात जो कुफारे मक्का कह रहे थे, यानी बेचैन करने वाला शक क्या होता है कि दिल मान भी रहा है, एक तो शक है, शक तो शक है। एक बेचैन करने वाला शक क्या होता है, आप हाँ ना की कैफियत में। तो यहाँ देखिए अल्लाह ताला उनके दिलों को खोल के मुरीब का लफ्ज आ रहा है कि हम बेचैन करने वाले शक में हैं। क़ाल या कौम, उसने कहा ए मेरी कौम, भला तुमने गौर किया कि अगर मैं हूं एक वाज़ेह दलील के अपने रब की तरफ से और उसने अता की मुझको अपनी तरफ से रहमत, तो कौन मदद करेगा मेरी अल्लाह से अगर मैंने नाफरमानी की इसकी। फमा तजीदूननी गैर तखसीर, तो नहीं तुम ज्यादा दे सकते मुझको सिवाय खसारे के। यानी तुम देखो, गौर करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला है ना, वो क्या क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं इनको, हजरत साले को कह रहे हैं कि हमारे दरमियान तो हम तुझे बड़ा मरजुआ, मरजुआ कहते हैं होनहार को, बड़े तवक्को वाला, या बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी तुझसे, तू तो हमारी फैमिली, हमारी कौम का बड़ा जबरदस्त आदमी था। ये तो किस पॉइंट पे आ गया कि हम तौहीद पे आ जाए। सेम चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। 40 साल क्या थे, सादिक कमीन, बाद में क्या हो गए, मजनून, साहिर, काजिब, क्या क्या इल्जाम नहीं लगे। सेम वही रवैया। और ये कह रहे हैं कि तुम अगर हकीकतन समझ लो मैं वाकई ट्रू प्रॉफिट हुआ, अला बय्यिना, मैं एक वाज़ेह दलील पे हुआ, और तुम मेरी इन असैतु, मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं, या इन शॉर्ट कि तुम मेरी नाफरमानी करो, तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। फमा तजीदूननी, और अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो मेरे लिए तो भाई खसारा ही खसारा है। 64, या कौमी हादिही नाकतुल्लाह, ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी है तुम्हारे लिए एक निशानी, बस छोड़ दो इसको खाती फिरे अल्लाह की जमीन में, और ना तुम छूना इसको बुराई के साथ, वरना पकड़ लेगा तुमको करीबी अजाब। क्या इन्होंने मुआवजा मांगा था कि हम ईमान ले आएंगे, ऊँटनी निकाल के दिखाओ पहाड़ से, जो हामला भी हो, प्रेग्नेंट भी हो, बहुत लंबी चौड़ी बड़ी सी ऊँटनी थी, पेट में बच्चा भी मूव कर रहा था, पहाड़ फटा, बाहर निकल आई। कुछ लोग ईमान लाए, कुछ नहीं लाए, जो लाए थे वो भी बस ऐसे ही लाए थे, जब उन्होंने देखा दूसरे ईमान नहीं लाए तो वो उनके साथ हो गए। अब ये क्या करती, सारा खाना खा जाती, फसले में सारा पानी पी जाती, अब इनके सारे जानवर भूखे रह जाते, बारी बन गई। एक दिन ये अल्लाह की ऊँटनी पानी पिएगी, खाना खाएगी, बच्चा भी हो गया उसका पैदा, वो बच्चा भी आम ऊँटों जैसा बच्चा था उसका, तो वो खा पी जाते थे सारा। तो वो सारा जो है, एक दिन ऊँटनी की बारी थी खाने पीने की, एक दिन इनके जानवरों की बारी होती थी पीने की। तो इस तरह से हुआ। लेकिन इनको होता है ना कि आपने कोई नेमत मांगी, अब आप उसका हक नहीं अदा कर पा रहे, या आप एक जेलेसी भी आ जाती है, आपको आजमाइश होती है आपकी। तो उनकी आजमाइश हुई, फअक़रूहा, तो उन्होंने कोचे काट डाली। तो उसके क्या किया, आपस में पूरी कौम में मशवरा हुआ, फाइनल हुआ इसको मार दो ऊँटनी को। पीछे से उसकी कोचे काटी, टांगों एड़ियों के पास जो पट्टे होते हैं वो काटे, वो नीचे गिरी, तो उसको मार दिया। बच्चा खैर कहा जाता है चीखता रोता रहा, फिर बच्चा भी मर गया। बच्चे के बारे में मुख्तलिफ वो मौजूद है, मुफस्सिरीन ने बयान की। फकाला तमत्ताउ, अब ऊँटनी मर गई, फिर क्या हुआ, तो फकाला, तो प्रॉफिट ने कहा फायदा उठा लो अपने घरों में 3 दिन। 3 दिन यानी मजीद मोहलत दी गई कि तौबा कर लो, फायदा उठा लो। दालिका वादुन गैरु मकजूब, ये एक वादा है झूठा नहीं हो सकता। फलम्मा जा अमरुना, तो जब आ गया हुक्म हमारा, निजात दी हमने सौले को और इन लोगों को जो ईमान लाए इसके साथ अपनी रहमत से और इस दिन के अजाब से, बेशक तेरा रब वो कुव्वत वाला है और जबरदस्त है, यानी अल्लाह ही का फैसला नाफिज होता है। 67, वखद लदीना सैया, और पकड़ लिया इन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया एक चिंगाड़ ने, तो हो गए वो अपने घरों में औंधे मुंह गिरने वाले। तो अब इन पे हवा का अजाब नहीं आया, इन पहाड़ों के अंदर घुसे थे। कहा जाता है हज़रत जिब्राइल ने चीख मारी है, पहाड़ों के अंदर कितना इको होता है, सोचे कितनी गूंज होती है। और फिर जब जलजला आया, जलजले का अजाब आया, तो पहाड़ों के पत्थरों में पिस गए। कालम यगनो फीहा, गोया कि नहीं वो बसे थे इसमें। खबरदार, बेशक समूद ने कुफर किया अपने रब से, खबरदार लानत हो समूद के लिए। आयत नंबर 69, वलकद जाअत रुसुलना इब्राहिम, अलबत्ता तहकीक आ गए हमारे रसूल। ये कौन है, फरिश्ते आए थे, तकरीबन 9 फरिश्ते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, खुशखबरी के साथ। बेटे की भी खुशखबरी थी, प्लस एक न्यूज और लाए थे कौमे लूत की तबाही। कौमे लूत मतलब हजरत इब्राहिम एक जगह प्रॉफिट थे, और हजरत लूत दूसरी जगह कुछ बस्तियां थी, वहां पे प्रॉफिट थे, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही प्रॉफिट आए ना, इसके बाद देखिए कितनी दुनिया फैली, क्योंकि ग्लोबल कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग है, अल्लाह ने इस दौर के लिए एक ही नबी भेजा। उस वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं थी कम्युनिकेशन, तो हर बस्ती में नबी होते थे। कौलु सलामा, फरिश्तों ने कहा सलाम, वो बोले सलाम। काला सलाम, हजरत इब्राहिम ने भी जवाब दिया, फमा लबिस्तान जा इजलिन हनीद, बस ना वो ठहरे मगर ले आए एक बछड़ा भुना हुआ तला हुआ, फौरन खाने के लिए कुछ लेकर आए। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि इलैहि, फिर जब देखा उन्होंने कि इनके हाथ पहुंचते नहीं है खाने की तरफ, यानी जो फरिश्ते हैं वो तो फरिश्ते हैं, खाना थोड़ी खाते हैं, तो वो खाने को हाथ नहीं लगा रहे थे। उस कल्चर में ये था कि अगर मेहमान खाना नहीं खा रहा, इसका मतलब है बुरे इरादे से आ रहा है। न कि रहूं व औजसा मिन्हु खीफा, तो वो अनजान हुए उनसे, यानी थोड़े घबराए और अपने अंदर खौफ महसूस किया। कौलू ला तखफ, फरिश्तों ने कहा तुम डरो नहीं, इन्ना उर्सिलना इला कौमी लूत, हम भेजे गए हैं कौमी लूत की तरफ। वम्रअतहु काइमतुन फदहिकत फबशरनाहा बिइसहाक, और इसकी बीवी खड़ी थी तो वो हंस दी। हजरत सारा मौजूद थी,
इनकी चचा की बेटी थी, और ये कि हमारे घर फरिश्ते हैं, इस पर वो खुश होकर उनकी हंसी निकली, और उनको फिर खुशखबरी दी इसहाक की। ये कौन से? हजरत इब्राहिम के बेटे। वह मिन वराई इसहाक याकूब, और इसहाक के बाद याकूब की। याकूब कौन? उनके पोते। बेटे और पोते की एक दफा में खुशखबरी दी। लगभग 100 के आसपास थी दोनों की उम्र, मियां बीवी की। कौलत या वैलता, वो बोली, हाय अफसोस मुझ पर, क्या मैं जन्म दूंगी और मैं आजिज बुढ़िया हूँ, और ये मेरा शौहर ये बूढ़ा है। यानी इतनी एज में हमें औलाद होगी। इन्ना हाजल शैउन अजीब, बेशक ये तो एक अजीब सी चीज है। 73। कालू अताजिबीन मिन अमरिल्लाह, कहने लगे फरिश्ते, क्या तुम ताज्जुब करती हो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रहमत से, और इसकी अल्लाह की रहमत है और इसकी बरकतें हो तुम पर ए घर वालों, बेशक वो तारीफ वाला और बुजुर्गी वाला है। ये ना, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। देखिए इसी से हमारा दुरूद शरीफ, जो दुरूद इब्राहिम इसलिए कहते हैं, यही अल्फाज है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, है ना, और बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, यहाँ बरकत हो रही है अलैकुम अहलल बैत। फलम्मा ज़हबा अन इब्राहिम, आयत नंबर 74, तो जब चला गया इब्राहिम से खौफ और आ गई इसके पास खुशखबरी, तो वो झगड़ने का लगा हमसे कौम के बारे में, लूत की। यानी उन्हें ये था कि थोड़ी मोहलत और दे दें, अब क्योंकि बहुत नरम दिल थे वो। इन्ना इब्राहिम हलीम अव्वाहुम मुनीब, बेशक इब्राहिम बिलाशुबा हिल्म वाले और बहुत आहे भरने वाले और रुजू करने वाले थे। या इब्राहिम, ए इब्राहिम, आरिदन हाजा, इससे एराज बरतो, यानी लूत वाली बात के मामले में तुम ना बोलो, इससे एराज करो। इन्नहु कद जा अमरु रब्बिक, बेशक आ चुका हुक्म फैसला तेरे रब का, बेशक वो आने वाला है इनको एक अजाब जो गैर मरदूद, फेरा जाने वाला नहीं है। नहीं, दुआ से भी जिदाल ना करो, बहस ना करो, अब वो अजाब की फिक्स हो चुका, मामला हो चुका, वो फेरा जाने वाला नहीं। आयत 73, वलम्मा जात रुसुलुना, जब आ गए हमारे भेजे हुए, यानी जो अ, अ, फरिश्ते थे वो लूत के पास आए, सी अबहिम, गमगीन हुआ इनकी वजह से और तंग हुआ इनकी वजह से दिल में। क्यों तंग हुए? क्योंकि वो खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए थे, और जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी वो जो हम जिन्स परस्ती है उसमें मुब्तला थी। और उनका एक गुनाह ये भी था कि वो लोगों को किडनैप करके उनके साथ ये काम किया करते थे। एक तो आपस में रजामंदी से करते थे, और एक बिल जबर भी करते थे। काफिले वालों को पकड़ लिया, अब उन्होंने देखा कि मेरे घर तो खूबसूरत लड़के आ गए। ये अच्छा, उनकी बीवी जो थी, वो हजरत लूत तो एक्सपर्ट थे, मतलब बाहर के थे, और एक कौम के नहीं थे, उस कौम के हजरत इब्राहिम के साथ माइग्रेट कर कर आए थे ना इराक से। बीवी वहीं की थी, तो बीवी की हमदर्दी अपनी कौम के साथ थी, तो उन्होंने मुखबरी कर दी कि बड़ा खूबसूरत लड़के आए इनके पास। तो वक़ाल हादा यौमुन असीब, और कहा कि ये दिन हमारे लिए सख्त है, शदीद है। मतलब उनके दिल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, कहने लगे अब ये सख्ती आने वाली है। वजाअहु कौमुहु युहरऊन इलैहि, और आई इसके पास इसकी कौम दौड़ती हुई। व मिन क़ब्लु कानू यअमलून, और इससे पहले थे वो अमल करते बुरे। क़ाल या कौमी हाउलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम, हजरत लूत ने कहा, ए मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, वो ज्यादा पाकीज़ा हैं तुम्हारे लिए, बस डरो अल्लाह से और ना तुम रुसवा करो मुझे मेरे मेहमानों के मामले में। यानी ये खातून खवातीन मौजूद है, इनसे निकाह करो। ये है, अलैसा मिनकुम रजुलुर रशीद, क्या तुम में कोई समझदार शख्स नहीं है, यानी कोई बंदा नहीं है जो तुम्हें इस तरह की बुराई से रोके। कालू लक़द अलिमता मा लना फी बनातिका मिन हक, कहने लगे कि अलबत्ता तहकीक तू जानता है कि हमें हमें तुम्हारी बेटियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। व इन्नका लतअलमु मा नुरीद, तुम जानते हो कि हमें क्या चाहिए। यानी हम तो ये जब लड़के आए हैं तुम्हारे पास इनके चक्कर में आए, तुम हमें क्या ऑफर कर रहे हो। आयत 80, कालू लौ अन्ना ली बिकुम कुव्वा, इसने कहा, हजरत लूत ने कहा कि बेशक मेरे लिए होती साथ मेरी कुव्वत, या मैं पनाह ले सकता इला रुकनिन शदीद, किसी मजबूत सहारे की तरफ। कबाइली निजाम था, अगर आपका कबीला है तो समझे आपके पास प्रोटेक्शन है। कोई कबीले से तो थे ही नहीं, वो तो थे जनाब बाहर के। तो उस वक्त वो परेशान हो रहे कि काश मेरा भी कोई कबीला होता तो मेरा प्रोटेक्शन मिल जाती हमें। कौलू या लूत, उन्होंने कहा, ए लूत, बेशक हम भेजे हुए हैं तेरे रब की तरफ से, हरगिज ना वो पहुंचेंगे तेरी तरफ। यानी ये फरिश्तों ने अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी कि हम लड़के नहीं है, हम इंसान नहीं है, हम तो फरिश्ते हैं, और वो तेरी तरफ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो असरी भी अहली का बेक़तिइन मिन अल-लैल, और बस ले चल अपने घर वालों को एक हिस्से में रात के, और पलट कर ना देखे तुम में से कोई एक मगर तेरी बीवी। यानी रातों रात तुम यहाँ से निकल जाओ, सुबह इन पर अजाब आने वाला है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। क्यों? क्योंकि इसलिए कि बुरा मंजर हमेशा जमा रह जाता है, और वो बहुत बुरा मंजर बनना था उनके साथ जब उन पर अजाब आना था। तो अपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, आप बुरी यादें लेके ना जाएं, आपने बहुत मेहनत की, और कोई बात प्रॉफिट को मोहब्बत होती है अपनी कौम से, बहुत संजीदगी के साथ वो काम करता है, तो का पीछे मुड़ के नहीं देखना। हाँ, तुम्हारी बीवी जरूर देखेगी। इन्नहु मुसीबुहा, बेशक वो पहुंचने वाला है इसको भी जो पहुंचेगा इनको, यानी तेरी बीवी को भी वो अजाब पहुंचेगा। इन्ना मौइदुहुम सुबह, बेशक इनके वादे का वक्त सुबह है, क्या नहीं है सुबह भी करीब।
करीब ही। आयत 82, फलम्मा जा अमरुना, तो जब आ गया हुक्म हमारा, कर दिया हमने इसके ऊपर वाले हिस्से को इसका नीचे वाला हिस्सा। वो अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिजील, और बरसाए हमने इस पर पत्थर पकी हुई मिट्टी के, ममदूद तह बतह। कहा जाता है कि हज़रत जिब्राइल अमीन ने अपना पर जो है इस बस्ती के नीचे ऐसे डाला और पूरी बस्ती उठा ली, और इतना ऊपर लेके गए कि इनके मुर्गों की जो बांग थी वो ऊपर फरिश्तों ने सुनी, और फिर पलट के दे मारा जमीन पे वापस। ये जो डेड सी है इसके पास कहा जाता है कि ये बस्ती थी। और ये डेड सी के बारे में जरूर पढ़िएगा कि इतना सॉल्ट है वहां कि आज भी वहां कुछ नहीं उगता, कुछ भी नहीं उगता, नमक ही नमक है वहां। और ये बिल्कुल पटक दी गई तो डीपेस्ट पॉइंट भी है, क्योंकि पर डाला हजरत जिब्राइल अमीन ने, तो कहा जाता है कि डीपेस्ट पॉइंट जो जमीन का है ना, खुश्की पे जो मौजूद है, या जो भी है सरफेस का जो कंपैरिजन बनता है सतह समंदर से जो हम कहते हैं, तो वो यहीं पे है। मुसव्वमतन इंदा रब्बिक, निशान। और प्लस क्या हुआ, पकी हुई मिट्टी के पत्थर, जो पकी हुई मिट्टी यानी ये जो वॉल्केनोज होते हैं ना, इनमें से जो पत्थर निकलते हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स, अलॉयज, वो पके हुए होते हैं, उबलते हुए। जो वॉल्केनो के पत्थर कैसे होंगे, तो वो इन लोगों के ऊपर बरसाया गया। और कहा जाता है कि हर पत्थर पे बंदे की निशानी थी, जिस बंदे के लिए वो पत्थर था वो पत्थर आकर उसी को लगा। मुसव्वमतन इंदा रब्बिक किया गया ना, निशान ज़दा तेरे रब की तरफ से। वमा हिया मिनज़ ज़ालिमीन बिबईद, और नहीं है वो जालिमों से कुछ दूर। व इला मदियन अखाहुम शुऐबा, हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम का किस्सा आ गया, और अहले मदियन की तरफ इनके भाई शुऐब को भेजा। ये एक अरबों का कबीला था, हिजाज और शाम के दरमियान, मदियन। क़ाला या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, इसने कहा है मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की, नहीं तुम्हारे लिए कोई इलाह इसके सिवा, और ना तुम कम करके दो नाप को और तोल को, बेशक मैं देखता हूँ तुमको, कि बेशक तुमको देखता हूँ भलाई है, बेखैर। यानी वो पीछे जो शिर्क था ना, ये कौम शुएब का जो क्या है, असल में नाप तोल में कमी करते हैं। देखिए ये लूती अमल भी हम में मौजूद है। मेरा तो मुंह नहीं पड़ रहा ये कहने के लिए कि उम्मत मोहम्मदी में मौजूद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जोड़ने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन हम लोगों में ये लूती अमल नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। कौम लूत का जो अमल है ये हमारी कौम में मौजूद है, हम आजकल के मुसलमानों में। ये मदियन शुएबा, ये हमें मौजूद है नाप तोल में कभी, ये भी हम करते हैं, हर ठेले वाला भी कर रहा है, और जो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठा है वो भी कर रहा है, ये भी हम सब कर रहे हैं। फिर हम पीछे देख कर आए दूसरी जो तकब्बुर था, कौम समूद आद, कमिटमेंट की, ईमान ले आएंगे, ईमान नहीं लाए, कमिटमेंट्स तोड़ना, ये सारे गुनाह हैं हम में। लेकिन हम पे अजाब नहीं आते, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। अजाब किस सेंस में आता है कि हम आपस में ग्रोहबंदी का अजाब है हम पे। वरना ये देखिए कितने खतरनाक अजाब है, जो पिछला अजाब देखा है, ये जो कौम लूत वाला अमल है, मर्द की मर्द के साथ ताल्लुक, या औरत का औरत के साथ भी कह लें आप किसी हद तक, तो आप ये देखिए इसकी कितनी सख्त सजाएं यहाँ पे दी गई हैं, कि वो ऊपर से आतिशफिशा फटा है और उसकी आग से जले वो लोग। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको माफ फरमाए, हमारी इस्लाह करे। वो कहते हैं कि तुम नाप तोल करके क्यों क्यों कम देते हो, इन्नी अराकुम बिखैर, मैं तो तुम्हें देखता हूँ बिखैर, तुम खैर के साथ नहीं, तुम्हारे पास माल है, तुम कौन सा गरीब हो, तुम फाकों पे आ गए हो कि तुम इस तरह से करप्शन कर रहे हो, तुम हो तो अच्छे बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हारे तो खूब बिजनेस रन हो रहे हैं, फिर भी तुम ये करप्शन कर रहे हो। मुराद ये है, देखिए कितनी मौजूद है ये हमारी माशरे में ये वाली बुराई। व इन्नी खाफू अलैकुम अदाबा यौमी मुहीत, और बेशक मैं डरता हूँ तुम्हारे बारे में घेर लेने वाले दिन के अजाब से। वही या कौमी, और मेरी कौम, पूरा करो नाप को तोल को इंसाफ के साथ, और ना तुम कम करके दो लोगों को इनकी चीजें, और ना तुम फसाद करो जमीन में फसादी बनकर। बक़ियतुल्लाहि खैर, अल्लाह की दी हुई बचत बाकी बेहतर है तुम्हारे लिए, यानी जो तुम्हारे तिजारत का जायज नफा है वो तो है, वो काफी है। एक्स्ट्रा करप्शन करके क्यों नफा कमा रहे हो। इनको तुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, यानी वो ईमान का दावा करते थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे, तो सेम हमारा वाला हाल है। वमा अना अलैकुम बिहफीज, और नहीं हूं मैं तुम पर निगहबान। आयत 73, कालू या शुएब, उन्होंने कहा ए शुएब, क्या तेरी नमाज हुक्म देती है तुझको कि हम छोड़ दें जिसकी इबादत हम करते हैं, हमारे बाप दादा, ये कि हम करें अपने मालों में से जो हम चाहें। यानी पहले मक्का वाली कंडीशन के अल्लाह को भी मानते हैं, मोमिनीन कह रहे हैं ना, ईमान वाले अपने आप को, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं शिर्क भी कर रहे हैं, जो बिल्कुल सेम अहले मक्का वाला, कुफार मक्का वाला। और दूसरा पॉइंट ये क्या, अन नफ़अलम फी अमवालिना मा नशा, तो हमें इस चीज से रोक रहा है कि हम वो जो हमारे बाप दादा कर रहे थे हम वो ना करें, और ये कि हमारे माल है, जो हम चाहेंगे करेंगे, हमारा बिजनेस, हमारा कारोबार, तुम कौन होते हो हमें बोलने वाले। दो पॉइंट वो यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, बेशक तू तो बड़ा ही बुर्दबार है, तू तो बड़ा रास्ताज है, यानी तुम एक अच्छे हो, इस पूरी सोसाइटी में तुम एक ही अच्छे हो। भाई बिजनेस ऐसे ही होता है, भाई कारोबार ऐसे ही होता है, हमें ना बोलो कि हमने कैसे करना है।
तुम अच्छे हो, तुम अच्छे बन के रहो। ये रवैया नजर आ रहा है आयत नंबर 87 में। काला या कौमी, इसने कहा मेरी कौम, क्या गौर किया तुमने अगर मैं हुआ एक ऊपर खुली दलील के, यानी तौहीद की बात कर रहे हैं अपने रब की तरफ से, और इस दिया इसने मुझको अपने पास से अच्छा रिस्क, यानी अच्छा रिस्क, वो भी अच्छा रिस्क, यानी हजरत शुएब भी मालदार थे, उनकी कौम भी मालदार थी, वो खुद भी मालदार थे, और इससे मुराद नबूवत भी है। वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन्हु, और नहीं मैं चाहता कि मैं खिलाफ करूं तुम्हारे तरफ इसके जिससे मैं रोकता हूं तुमको। यानी मैं नहीं करूंगा ये करप्शन, मैं अपने कारोबार में बिजनेस में ये दो नंबरिया नहीं करूंगा, मैं कॉलो फेल का तजाद नहीं करूंगा। इन रीदू इल्ला इस्लाह, नहीं मैं चाहता मगर इस्लाह, जिसकी जो मैं इस्तिताअत रखता हूँ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, और नहीं मेरी तौफीक मगर अल्लाह के साथ। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, और इसी पर मैंने तवक्कल किया और इसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। व या कौमी ला यजरिमन्नकुम शिकाकी, और ए मेरी कौम ना आमादा करे तुमको मेरी मुखालिफत, के पहुंचे तुमको मानिंद इसके जो पहुंचा कौम नूह को, या कौम हूद को, या कौम सालेह को, और नहीं कौम लूत तुमसे कुछ दूर। यानी कल की बात ही तो है, कौम लूत तो बिल्कुल ही पास है, उन पर उनकी गुनाहों की वजह से अजाब आया, शिर्क की वजह से अजाब आया, तो तुम मेरी मुखालफत में, मेरी जिद में अल्लाह से नाफरमानी ना करो। यानी वो इस हद तक आ गए कि खुदा के लिए सीधे हो जाओ, शिर्क छोड़ दो, ये फसाद छोड़ दो, जो बिजनेस में तुम दो नंबरी करते हो इसको छोड़ दो, मुझे भले साइड करो लेकिन अल्लाह की मुखालफत ना करो। वस्तगफिरू रब्बकुम, और बख्शिश मांगो अपने रब से, फिर तौबा करो। साइड करने से मुराद ये कि अल्लाह की फर्माबरदारी, प्रॉफिट्स पे तो ईमान लाना जरूरी होता है, वो तो ईमान का हिस्सा है। मुराद इससे ये है कि मेरी मुखालफत में, क्योंकि मैं तुम्हारे कारोबार के आड़ आ रहा हूँ, मैं बीच में आ रहा हूँ तुम्हारे नफे के, तो तुम्हें मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ। तो तुम मेरी मुखालफत में, कि जिसको शुएब ठीक कह रहा हमने उसको ठीक नहीं कहना, इस पॉइंट पे मत आओ तुम। ये होता है ना, जिससे हमें नफरत होती है उसकी अच्छी बात भी हमें बुरी लगने लगती। तो वो इस हद तक आ गए दावा के काम में, वो कह रहे हैं कि मेरी मुखालफत की वजह से तुम ना करना अल्लाह की नाफरमानी, बस किसी तरह इस फर्मा बरदारी पे आ जाओ। इन्ना रबी रहीम वदूद, बेशक मेरा रब रहम फरमाने वाला मोहब्बत करने वाला है। कालू, उन्होंने कहा, या शुएब, ए शुएब, नहीं हम समझते बहुत सा इसमें से जो तुम कहते हो, यानी तुम्हारी बातें भाई हमें समझ नहीं आती। तुम जो पॉलिसीज बता रहे हो ना बिजनेस करने की, जिससे ये जो तुम कह रहे हो जायज नफा से तुम कमा लोगे, भाई ये हमारी अकल में नहीं आता है, ऐसे तो कोई कारोबार नहीं चलते। ये सूद को रख लें, अब जैसे ये तो नापतोल में कमी है आजकल के दौर में, हम सूद के मामले में कहते हैं, नापतोल कमी भी कहते हैं। सूद में हमारे मुआशरे में ये बात कही जाती है कि भाई ऐसे ही होता कारोबार, अब क्या करें बताएं, हम अब हम कैसे चलाएं काम। तो वो यही अब, और दूसरा चीज को अगर देखिए आप, तौहीद, तो तौहीद के हवाले से भी यही है जो हमारे आबा अजदाद करते थे, हमें नहीं समझ आती तौहीद। वही ना ला नराक, और बेशक हम अलबत्ता देखते हैं तुझको अपने में कमजोर। वलौला रहतुका लरजमनाक, और अगर तेरा कुंबा ना होता ना तो हम तुझे संसार कर देते, यानी कबीला तेरा ना होता, वही कबीले से मजबूती मिलती है ना, तो पत्थर मार मार के तुझे हलाक कर देते। वमा अंत अलीना भी अजीज, और नहीं है हम पर ये करना कुछ भारी। काला या कौमी अरहती आज़ु अलैकुम मिनल्लाह, हजरत शुएब ने कहा, ए मेरी कौम, क्या मेरा कुंबा ज्यादा गलबे वाला है तुम पर अल्लाह के मुकाबले में? ये नहीं, तुम मेरे कुंबे से डर रहे हो, अल्लाह से क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो अल्लाह को मानते थे ना, बात सारी ये है। मोमिनीन कह रहे हैं अपने आप को, कुफारे मक्का वाला मामला। वत्तखज़्तुमूहुम वराअकुम ज़िहरिया, और तुमने अल्लाह को बना लिया अपने पीछे, पुश्त के पीछे, यानी अल्लाह को तो पीछे फेंक दिया कहीं तुमने, और मेरे कुंबे से डर रहे हो तुम। इन्ना रब्बी बिमा तअमलूना मुहीत, बेशक मेरा रब इसके साथ जो तुम अमल करते हो घेरने वाला है। और या कौमी अमलू अला मकानतिकुम, और इसने कहा मेरी कौम तुम अपनी जगह पर अपना काम करो, मैं अपनी जगह अपना काम करने वाला हूँ। अनकरीब तुम जान लोगे कौन है आता है इस पर एक अजाब जो रुस्वा कर देगा इसको, और कौन है वो जो झूठा है। वर तकीबू, और इंतजार करो, बेशक मैं तुम्हारे साथ इंतजार करने वाला हूँ। ये कब कहा उन्होंने? जब वो मायूस हो गए ना, तबलीग करके, दलीलें दे के। आयत 94, वलम्मा जा अमरुना, और जब आ गया हमारा फैसला, निजात दी हमने शुएब को और इन लोगों को जो ईमान लाए इसके साथ अपनी रहमत की तरफ से, और पकड़ लिया इन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया चीखने, तो वो हो गए अपने घरों में औंधे गिरने वाले। जोर की चीख आई थी और जबरदस्त गड़गड़ाहट थी, जलजला था। असल में हुआ यह था, बहुत अच्छा मौसम हो गया, सारे जाके ना बादल बादल आ गए, बादल के नीचे जमा हो गए, कि जो पिकनिक डे तरह तफरी करते हैं। क्योंकि अब देखिए ये कब होता है? जब आसूदगी होती है, जब आपके पास पैसे वैसे बहुत होते हैं ना, माल बहुत होता है, तो आप यही सोचते रहते हैं फला जगह सेल लगी, चलो वहां चलते हैं, आज मौसम अच्छा, चले यहाँ चलते हैं, चले सी साइड चलते हैं। हर वक्त दिमाग इसी में दौड़ता रहता है। फिर बेमकसद होती है ना चीजें। बाकी जो गरीब बंदा है वो उससे तो कमाने की लगी होती है, दो रोटी की लगी होती है। जो जिनके पास माल होता है फिर वो इसी तरह सोचते हैं। का अल्लम यगना, गोया कि नहीं वो। अच्छा, जब ये बादलों के नीचे जमा हुए तो बादलों से पानी की जगह बरस पड़ा आग, तो इन पे आग भी बरसी आसमान से, इनको चीख भी अजाब भी आया, इनको चीख कैसी जबरदस्त गड़गड़ाहट हुई जमीन में, वो शोर, दहशत होती है ज्यादा शोर हो तो। फिर जलजला भी आया, नाक तोल में कमी करते थे, अल्लाह को मानते हुए कमी करते थे।
हकूकुल इबाद में सख्ती, हकूकुल इबाद में बहुत इन्होंने परेशान किया ना दूसरों को नाप तोल में कर। तो आप देखें इन पे कितने सारे अजाब आ रहे हैं एक साथ। गोया कि वो नहीं बसे थे इसमें। अला खबरदार, बुअदल लिमदियन कमा बाइदत समूद, समूद खबरदार, दूरी है मदियन के लिए जैसे कि दूर हुए समूद। यहाँ इनका किस्सा खत्म हो गया। आयत 96, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। और अलबत्ता तहकीक भेजा हमने मूसा को अपनी आयात के साथ और खुली दलील के साथ। आयात यद बैजा, आसा, असा जो था उनका, खुली दलील अल्लाह का पैगाम था, तौहीद की बात थी। इला फिरौना, फिरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ, तो उन्होंने पैरवी की फिरौन के हुक्म की। और नहीं था हुक्म फिरौन का बिरशीद, रास्ती वाला है, यानी कोई समझदारी वाली बातें नहीं करता था। रशीद क्या होता है? रशीद नाम भी रखते हैं, फहम वाला समझदार इंसान। यकदुमु कौमहु यौमल क़ियामती फ़अौरदहुमुन नार, क़यादत करेगा अपनी कौम की कयामत के दिन, फिर ले आएगा इनको आग पर। यानी आगे आगे चलेगा, उस मानने वाले वो लीडर बनेगा, और उस जैसे जितने लोग होंगे उसी के कबीले में होंगे, जितने बड़े बड़े मुतकब्बिरीन जो सरदार हैं, जो उसकी तरह के हाकिम रहे हैं, आज भी मौजूद हैं, वो सब उसके झंडे तले होंगे। और फिर जब वो जाके जहन्नुम के आगे खुद भी गिरेगा और उनको भी गिराएगा। वो भी सल बिरुदुल मौरूद, और कितनी बुरी है ला खड़ा करने की जगह। वह उतबिउ, आयत 99, और वो पीछे लगाए गए इस दुनिया में लानत और कयामत के दिन। कितनी बुरी है बख्शिश दी जाने वाली। दालिका मिन अंबाइल कुरा, ये बस्तियों की खबरों में से हम बयान करते हैं इसको आप पर। इनमें से कुछ कायम है, कुछ खड़ी है, और कुछ बस्तियां जिनकी जड़ कट चुकी हैं। कायम है यानी कुछ के आसार है। कौम समूद के मौजूद है, जो पत्थर है वो यहाँ सऊदी अरब में टूरिस्ट साइट बना दिया अब तो उसको। तो वो देखिए आप, वो मौजूद है पहाड़, उनमें उन्होंने घर तराशे हैं। कुछ ऐसे जिनका नहीं पता। एकदम हम एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, तो उसमें एक पूरा आइलैंड है जो बड़ा अच्छा, इसमें नालियों का सिस्टम बना हुआ है, बड़े अच्छे हौज बने हुए नहाने के लिए। और वो क्या होता है, पानी जब ऊपर चढ़ता है ना, वो पूरा आइलैंड नीचे चला जाता है। और फिर कुछ टाइम ऐसे होते हैं, महीने कुछ ऐसे होते हैं, वो पानी से बाहर आ जाता है। पत्थर है, लाजमी सी बात है, पानी है। आप देखिए पूरा जबरदस्त शहर है वो, जो भी है किसी जमाने में वहां, ये अल्लाह की वही है ना, अजाब आए हुए अल्लाह के। तो कुछ बस्तियां ऐसी हैं जो खड़ी हैं, कुछ बस्तियां ऐसी जो मिट चुकी, जिनका हमें पता भी नहीं। मोहनजोदाड़ो देखिए आप, पूरी ये माशाल्लाह, उसको आप देखें जाके, उसके बारे में सुन रही थी मैं, तो मैं हैरान रह रही थी कि उस जमाने में वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी उनके पास। और टेक्नोलॉजी से मुराद उस जमाने के हिसाब से कि उन्होंने जिस तरह निकासी का निजाम बनाया हुआ था, और जो उनके तो अल्लाह ताला ने जिसको चाहा मिटा दिया, जिनको चाहा इबरत के लिए छोड़ दिया। आयत 101, वमा ज़लमनाहुम वलकिन ज़लमू अनफुसहुम फमा अगनत अन्हुम आलिहतुहुम अल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाहि मिन शै। और नहीं जुल्म किया हमने इन पर, लेकिन उन्होंने जुल्म किया अपनी नफ्सों पर। तो ना काम है इनको इनके इलाह, और वो जिनको पुकारते थे अल्लाह के सिवा कुछ भी। लम्मा जा अमरू, जब आ गया हुक्म तेरे रब का। वमा जादूहुम गैर ततबीब, तत्बीब, और ना उन्होंने ज्यादा किया इनको सिवाय हलाकत के। यानी मुसलसल हलाकत, गैर ततबीब मुसलसल हलाकत, मुसलसल खसारे में। वकदालिका क़दू रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा, और इसी तरह पकड़ होती है तेरे रब की जब वो पकड़ता है बस्तियों को और वो जालिम होती हैं। तो गुनाहों की कसरत की वजह से पकड़ होती है, पॉइंट है इसमें। इन अखज़हु अलीमुन शदीद, बेशक इसकी पकड़ दर्दनाक है शदीद। इन फी ज़ालिका लआया, आयत 103, बेशक इसमें एक निशानी है वास्ते इसके जो डरे आखिरत के अजाब से। ये ऐसा दिन है जिसमें जमा किए जाएंगे वास्ते इसके लोग, अल्लाह के लिए लोगों को जमा किया जाएगा। और ये एक दिन है यौम मशहूद, एक दिन है हाजिरी का। ये एक ऐसा अटेंडेंस का दिन है, क़यामत का दिन। हर किसी को प्रेजेंट लगानी है, हर कोई प्रेजेंट होगा, शुरू से आखिर तक, अव्वल आखिर सब जमा हो जाएंगे, जानवर तक जमा हो जाएंगे। वमा नुअखिरुहु इल्ला लिअजल, और नहीं हम ताखिर कर रहे हैं इसको, किसको? आखिरत को, मगर वास्ते एक मुद्दत के लिए जो कि मादूद, गिनी चुनी। यानी कयामत के आने की एक मुद्दत है, जब आएगी तो कायम होगी। यौम याती ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्नी, जिस दिन वो आ जाएगी ना कलाम करेगा कोई शख्स मगर अल्लाह के इज़्न के साथ। तो इनमें से बाज बदबख्त होंगे और बाज खुशबख्त होंगे। तो रहे वो लोग जो बदबख्त हुए तो में आग में होंगे, इनके लिए इसमें चीखो पुकार होगी, और आग में इनके लिए दहाड़ना होगा। ये जफीर शहीक गधे की आवाज को कहते हैं, जो गधा एक बाहर निकालता है फिर एक अंदर खींचता है, फिर बाहर निकालता है आवाज, फिर आवाज अंदर खींचता है। तो ये जहन्नुम में भी ऐसी आवाज होगी जफीर शहीक की। तो इनके लिए वो आवाज है। अब बहुत देर तक कुछ साउंड चलता रहे ना, इवन क्या आप घर में लेटी हुई हो और एक एक ड्रॉप पानी गिर रहा हो सिंक में, अब वो एक ड्रॉप गिरने की आवाज आपको बुरी लगने लगती है, आप बिस्तर से उठती हैं बेजार होकर, परेशान होकर, उस आवाज को बंद करती हैं, सिंक को। यार ये क्या शोर हो रहा है। घड़ी की टिक टिक बुरी लगने लगती है। ये बहुत माइनर आवाज है। जफीर शहीद कैसी आवाज होगी, अस्तगफिरुल्लाह। खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले हैं इसमें जब तक कायम है आसमान और जमीन, मगर जो चाहे तेरा रब, बेशक तेरा रब फ़आलुल लिमा युरीद, कर गुजरने वाला है इस चीज को जिसको वो करना चाहता है।
आयत नंबर 108, वअम्मल लदीना सुईदू, और वो लोग जो नेक वक्त हुए फफिल जन्नत, तो जन्नत में है, हमेशा रहने वाले हैं इसमें जब तक कायम है आसमान और जमीन, मगर जो चाहे तेरा रब, बख्शिश है लाजवाल गैरा मजदूद, जिसका सवाब कभी खत्म नहीं होगा, गैरा मजदूद, कंटिन्यूस कंटिन्यूस सवाब है, कंटिन्यूस जन्नत की नेमतें दायमी कंटिन्यूस, असल फैसला अल्लाह का ही है। अच्छा, इन दोनों को आप देख लें, आयत नंबर 107 और 108, ये दो ऐसी आयतें जिसमें कुछ मुफस्सिरीन एक होप बयान करते हैं कि शायद जहन्नुम खत्म कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि खालिदीना फीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक, कि जहन्नुम में हमेशा रहने वाले हैं जब तक कायम है आसमान और जमीन, मगर जो चाहे तेरा रब, इल्ला मा शाअ रब्बुक। और इल्ला से जो इसको अलग किया गया है ना, इससे वो एक उम्मीद जाहिर करते हैं, जबकि अक्सर कुरान में ये आता है, ज्यादा तो रिवायत ऐसी की है कि हमेशा हमेशा रहेंगे जहन्नुम में, लेकिन यहाँ पे भी खालिदीना फीहा ही आया, हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन मा शाअ रब्बुक जो आया आयत नंबर 107 में, इससे वो एक उम्मीद करते हैं कि हो सकता है अल्लाह चाहे तो जहन्नुम को खत्म कर दे। तो बहरहाल ये कि मुफस्सिरीन की राय है, और यकीनन हम एहतराम करते हैं, और मैं भी, मुझे भी एक होप होती है, क्योंकि जहन्नुम जहन्नुम ही है, जहन्नुम जहन्नुम ही है। अल्लाह वो अस्तगफिरुल्लाह। 109 देखिए, फला तकूफी मिरियतिन मिम्मा याबुदु हाउलाई, बस ना तुम शक में हो इससे जो इबादत करते हैं ये लोग, यानी मुशरिक, नहीं वो इबादत करते मगर जैसा कि इबादत करते थे इनके बाप दादा इससे पहले, और बेशक हम अलबत्ता पूरा पूरा देने वाले हों इनको, इनको इनका हिस्सा बगैर कमी की हुई, यानी जो शिरक करता है उसका हिस्सा अल्लाह कह रहे हैं मैं पूरा पूरा दे दूंगा इनके गुनाह का। वो वलक़द आतैना मूसा, और अलबत्ता तहकीक दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, बस इख्तिलाफ किया गया इसमें, और अगर ना होती एक बात जो गुजर चुकी, यानी जो मोहलत दी जाती वो वाली बात ना होती, तो तेरे रब की तरफ से अलबत्ता फैसला कर दिया जाता है इनके दौरान, यानी जो तौरात को मानते हैं वो जो इसमें तब्दीलियां की हैं और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, तो इनमें भी फैसला हो जाता है, लेकिन एक मोहलत सबको दी जाती है। वह इन्नहुम लफी शक्किन मिन्हु मुरीब, और बोलता वो बेशक इसमें इसकी तरफ से बेचैन कर देने वाले शक में, दोबारा मुरीब आ गया, यानी दिल मानते हैं कि कुरान दुरुस्त है, जो तौरात पढ़ते हैं उनमें से जिन कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके दिल मानते हैं कुरान दुरुस्त दुरुस्त है, लेकिन शक शक में ही है। वह इन्ना कुल्ल लम्मा लयुवफ्फियन्नहुम रब्बुका आमालहुम, और बेशक सबके सब अलबत्ता जो वो जरूर पूरा करके देगा इनको तेरा रब इनके अमाल, इन्नहु बिमा यामलून खबीर, बेशक वो जो अमल करते हैं उसके साथ खबर रखने वाला है। आयत 112, फस्तकीम, बस कायम रखो, जैसा कायम रह जैसा कि तू हुक्म दिया गया है, और जो तौबा करें तेरे साथ, वला तत्गाओ, ना तुम सरकशी करो। उनकी बात बता के कह दी गई, उन्हें दो तीन दफा आ गया पिछली आयत में कि जरूर व जरूर उनको पूरा पूरा अजाब दे दिया जाएगा, पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। ये उनकी बात हो गई। हमारी बात क्या है? हमारी बात क्या है? हमने कायम रहना है, साबुत कदम रहना है, अमल पे, अकीदे पे, अपने नमाज रोजे पे, अपनी दावा के काम पे, अपनी तबलीग पे, जैसा कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। वमन ताबा माक, और वो भी जो तेरे साथ पलट कर आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा खासकर, वला ततगा, और ना तुम सरकशी करो। तो तौबा इस्तिगफार करने वाले सहाबा कराम वगैरह भी, और आज के दौर में भी जो तौबा इस्तिगफार कर रहे हैं, इन सब के लिए हुक्म है, इन्ना हो बेशक वो बिमा तामलूना बसीर, जो तुम अमल करते हो देखने वाला है। आयत 113, वला तरकनु इला लदीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, और ना तुम माइल हो इन लोगों की तरफ जिन्होंने जुल्म किया, वरना छू लेगी तुमको आग। यानी जो कुफार मक्का है ये ऑप्शंस देते हैं कि ऐसा कर लो तो हम भी थोड़ा ऐसा कर लेंगे, तुम थोड़े से तुम कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा हम करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने, नहीं, तुमने मोहम्मद कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अगर तुमने किया फतमस्सकुमुन नार, तो छू लेगी तुमको आग, और नहीं होगा तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार, और ना फिर तुम ला तुनसरून, और फिर ना तुम मदद दिए जाओगे। यहाँ से पता चलता है अल्लाह अल्लाह है और बंदा बंदा है। अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कह रहे हैं, और दीन के मामले में, कुरान के मामले में, उसूल जो अल्लाह ने दिए उनके मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई और हो। वकीम सलाह, और क्या करने वाले काम है, और कायम करो नमाज को दोनों किनारों पर दिन के, और कुछ हिस्सा रात में से। दोनों किनारों पे दिन पे, सुबह से लेकर असर तक का वक्त हो गया, दोनों किनारे हो गए, सुबह और असर दो किनारे। और जुल्फम मिनल लैल, और कुछ हिस्सा रात में, रात में मगरिब और इशा आ गई, तो सुबह फजर जोहर असर दो किनारों में हो गई, जुल्फम मिनल लैल मगरिब इशा, पांच नमाजें यहाँ से हो गई। ये हम अहले सुन्नत वल जमात इसको इस तरह लेते हैं, अहले तशी कहते हैं ये दो वक्त दिए हैं इन्होंने, तरफन नहार व जुल्फम मिनल लैल, तो वो जमा कर लेते हैं। फजर तो खैर पता है जमा ही होती है, तो जोहर असर जमा कर लेते हैं, तरफा तरफा ये नहार, और जुल्फा मिनल लैल मगरिब इशा जमा कर लेते हैं। तो कहते हैं पांच औकात नहीं है, दो ही औकात है। इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, बेशक नेकियां ले जाती हैं बुराइयों को, ज़ालिका ज़िक्रा लिद्दाकिरीन, बेशक एक नसीहत है जिक्र करने वालों के लिए और याद रखने वालों के लिए। वस्बिर, और सब्र कीजिए, फइन्नल्लाहा ला युज़िउ अज्रल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला नहीं जाया करता
अजर एहसान करने वालों का। आयत 116, फलौला काना मिनल कुरून, फिर क्यों ना थी कौमों में से तुमसे पहले समझ वाले जो रोकते फसाद से जमीन में, मगर बहुत थोड़े इनमें से जिनको निजात दी हमने। यानी पहले भी इतनी बड़ी बड़ी कौमें गुजरी हैं तो अकल से काम नहीं लिया उन्होंने, तो बहुत थोड़े थे। बाकी को साहिब राय नहीं थे, उलू बकीयतिन कहते समझ वाले को, साहिब अकल को। वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उतरिफू फीही व कानू मुजरिमीन, और पैरवी की इन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया इनकी जो दौलत दिए गए थे इसमें से, और वो मुजरिम थे। और असल मसला ये था मेजोरिटी क्यों खराब थी, इसलिए कि जो टॉप लेवल का तबका होता है ना, जो बहुत नेमतों में होते हैं, वो बिगड़ जाते हैं, और जो कॉमन लोग होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो इस तरह से मेजोरिटी बिगड़ती है जो मामले में, क्योंकि बार बार आपने देखा कुरान में सरदार सरदार सरदारों का लफ्ज बहुत आता है। जो सरदार थे, जो इलीट क्लास होती है, उनको लोकल लोग फॉलो करते हैं, ये हकीकत है, गैर इरादी तौर पर। आज भी आप देखें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किन को फॉलो किया जाता है? ऐसी पर्सनैलिटीज को ना, जो बहुत ही कोई फेमस होती हैं, तो उनको फॉलो करने वाले कितने लोग होते हैं। वमा काना रब्बुका लियुहलिक, आयत नंबर 117, और नहीं है तेरा रब के हलाक कर दे बस्तियों को जुल्म के साथ, जबकि इसके रहने वाले इसलाह करने वाले हों। ठीक है, जुल्म जब आता है, जब गुनाह बढ़ते हैं। आयत 118, वालो शाह रब्बुका लजअल नासा उम्मतन वाहिदा, और अगर चाहता तेरा रब अलबत्ता कर देता लोगों को एक उम्मत, यानी सब तौहीद पर होते। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, फिक्र और सोच की आजादी दी है। यहीं से हम इंसान है, यहीं से हमारा हिसाब होना है। अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है सब तौहीद पर आ जाए, लेकिन हमारी सोच अलग है, हमारी फिक्र अलग है, ये हमें इंडिपेंडेंस दी गई है। वला यजालूना मुख्तलिफीन, और हमेशा रहेंगे इख्तिलाफ करने वाले। इसी सोच और फिक्र की आजादी की वजह से आपस में इख्तिलाफ होते हैं। मियाँ का बीवी से कोई इख्तिलाफ चल रहा है किसी बात पे, बेटा बेटे आपस में, दो भाई हैं, इख्तिलाफ चल रहा है उनका, इल्ला मन रहीम रब्बुक, मगर जिस पर रहम करे तेरा रब। और इसी के लिए इसने पैदा किया इनको, किसके लिए? इसी, ये जो सोच फिक्र की आजादी है, चॉइसेस दी हैं हमें, इख्तियार दिया, और इससे हमारी आजमाइश होगी। इसी के लिए वलिदालिका खलक़हुम, इसी के लिए उनको पैदा किया गया। वतम्मत कलिमतु रब्बिक, और पूरी हो गई बात तेरे रब की, अलबत्ता मैं जरूर भर दूंगा जहन्नुम को जिनों से और इंसानों से, सबके सबसे। ये पीछे हम देख कर आए थे, शैतान ने चैलेंज किया था, तो अल्लाह ने कहा था कि जो तेरी पैरवी करेगा तुझसे और मैं उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बचाए इससे। आयत 120, वकुल्लन नकुस्सु अलैक, और हर एक को हम बयान करते हैं आप पर इन रसूलों की खबरों में से, जो हम मजबूत करते हैं इसके साथ तेरे दिल को। तो ये जो किस्से बयान हुए इतने, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दिल क्या हो, मजबूत हो जाए, इस बात आ जाए उसमें। वजह आका फी हादिहिल हक, और आ गया तेरे पास हक में से, यानी कुरान में से, और नसीहत और याद दहानी ईमान वालों के लिए। तो कुरान हक, नसीहा और जिक्र है उनके लिए जो ईमान लाते हो। वकुल लदीन ला युमिनून अमलु अला मकानतिकुम, और कह दीजिए इन लोगों को जो ईमान लाए नहीं लाते, अमल करो अपनी जगह पर, बेशक मैं अमल करने वालों में से हूँ। वंतज़िरू, और इंतजार करो, इन्ना मुंतज़िरून, बेशक हम इंतजार करने वाले हैं। यानी पिछली बिस्तियों का सारा किस्सा देखा है, तुम उनके खंडरात से गुजरते हो, न जाने तुम्हें किस चीज ने रोका ईमान लाने से, तो तुम भी भाई अब इंतजार करो, हम इंतजार करते हैं। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, आयत 123, और अल्लाह ही के लिए गैब आसमानों पर जमीन पर, इसी की तरफ लौटाए जाते हैं मामला सारे के सारे। बस इबादत कीजिए इसकी और तवक्कल कीजिए इस पर। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और नहीं है रब तेरा गाफिल इससे जो तुम अमल करते हो। देखिए सूरह हूद यहाँ हमारी खत्म हुई, सूरह यूसुफ हमारी शुरू होगी। सूरह यूसुफ भी असल में, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अहले मक्का के कुरैश, मतलब कुरैश में से ही ना, बनु हाशिम में से, वही सरदार हैं, वही भाई थे ना वो भी उनके एक तरह से। पीछे सबका नाम क्या आ रहा था सारे प्रॉफिट्स का? अखाहुम हुदा, अखाहुम शुएबा, अखा भाई उनका, भाई उनका। अब यहाँ पे स्पेशली बिल्कुल करीबी भाई की मिसाल देके सूरह यूसुफ आ रही है आगे, इसमें मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को असबात दिया जाएगा। एक तो किस्सा सही से बयान किया जाएगा, क्योंकि इसकी डिस्टॉर्टेड फॉर्म, इसको टेढ़ा मेढ़ा करके बाइबल में बयान किया गया है। तो एक तो करेक्शन की जाएगी वहां से कि बात ऐसी नहीं है, बात ऐसे, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को इस बात होगा कि हाँ ऐसे, क्योंकि बाइबल के मुख्तलिफ वर्जन मौजूद हैं, बहुत सारी किताबों में से, बाइबल की बहुत सारी किताबें, उनमें से कुछ किताबें सिलेक्ट की गई हैं, फिर उनको बाइबल का दर्जा दिया गया। तो कुछ सही वर्जन भी मौजूद है, तो जो है वो देखेंगे जब वो पढ़ेंगे आज से, अभी आज के दौर में जिनके पास वो पुरानी बाइबल्स भी हैं, या जिनके पास उनका डेटा है, क्योंकि किसी ना किसी हालत में कुछ ना कुछ किताबें भी मौजूद हैं, तो उनको पता चलेगा। जैसे एक सहीफा मिला है जिसमें कुरान का नाम बक्का है, सॉरी मक्का का नाम बक्का लिखा हुआ है, बाइबल का एक बहुत पुराना नुस्खा मिला है जिसको वो अब नहीं पढ़ते, दौरे हाजिर की जो बाइबल है, तो कुरान में मक्का का नाम बक्का है। तो ये करेक्शन है जिससे पता चलता है कुरान सही किताब है, कुरान सच्ची किताब है। तो इसी तरह इस किस्से में, सूरह यूसुफ का किस्सा बयान करने में बहुत सारे अहकाम आते हैं, एक दो मैंने आपसे डिस्कस किए, फिर ये वाहिद किस्सा है कुरान में नबियों का जो पूरी एक स्ट्रेच में बयान हुआ है शुरू से आखिर तक। फैमिली के साथ क्या मामला करने हैं, वो इसमें बहुत अच्छी तरह डिस्कस किए गए हैं। और सबसे बड़ा चीज जो इससे मिलेगी,
सब्र और एहसान, सब्र एहसान, सब्र एहसान, ये हमें यहाँ देखने को मिलेगा। हम इसको देख लेते हैं। और ये कब नाजिल हुई? कहा जाता है आमुल हुज़न में नाजिल हुई, जिस साल हजरत खदीजा और हजरत अबू तालिब, हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा और अबू तालिब दोनों का इंतकाल हो गया था। तो मुश्किल वक्त था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन बहरहाल आमुल हुज़न कहते हैं इसको, मशहूर हो गया है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सब्र से ये वक्त गुजारा था। तो इसको देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये अलिफ लाम रा, ये आयात है किताब रोशन की, ठीक है। तो इशारा बईद का है क्योंकि ताजीम है। तिलका का मतलब ये नहीं होता ना, तो वो आयात हैं, जबकि किताब तो सामने। ताजीम के लिए अरबी जबान में ऐसा करते हैं। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, बेशक नाजिल किया हमने इसको, हमने नाजिल किया हमने इसको एक कुरान अरबी जबान में, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अकल समझ से काम लो, ठीक है। तुम्हारी जबान में किताब आ रही है ताकि तुम इसको समझ सको। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, बेशक हम बयान करते हैं आप पर, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, किस्सों में से बेहतरीन किस्सा, साथ इसके जो हम वही करते हैं आपकी तरफ इस कुरान में से। व इन कुत्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन, बेशक थे आप इससे पहले अलबत्ता गाफिलों में। यानी कुरान से ही आपको सारे किस्से पता चल रहे हैं, बातें पता चल रही हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तो कुछ नहीं पता था। इस काला यूसुफ अली अबी, जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से, तकरीबन 12 साल की इनकी उम्र थी, यहाँ से वाकया शुरू हो रहा है। यह आबती है मेरे अब्बाजान, बेशक मैंने देखा 11 सितारों को और सूरज को और चांद को। मैंने देखा इनको के ली साजिदीन, मेरे लिए सजदा कर रहे हैं, ठीक है। अबू की जगह अबती आ रहा है। अबती है जैसे, अबती ऐसे जैसे लाड से कहते हैं, हम कहते हैं अब्बू, ये तो अब्बू है। और एक था ए मेरे प्यारे अब्बू जान, उर्दू में हम ऐसे लाड से बोलेंगे ना, प्यारे अब्बू जी, प्यारे अब्बू जान। तो अबती, अबती इस सेंस में कहा जा रहा है। इससे उनका अंदाज पता चल रहा है कि कितने अ, तमीज वाले, तहजीब वाले, मोहब्बत वाले थे हजरत यूसुफ। हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इसहाक, हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब, हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ, ठीक है। और ये केनान की बात है, फलस्तीन की। अभी हजरत यूसुफ मिस्र नहीं आए। तो ख्वाब देखते हैं कि 11 सितारे चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। काला या बुनैया ला तक़सुस रुय्याका अला इख्वतिका फकीदू लका कैदा, उनके वालिद ने कहा मेरे बेटे तुम ना बयान करो ना अपना ख्वाब अपने भाइयों पर, ना वरना वो चाल चलेंगे तुम्हारे लिए एक चाल। अब ये 11 भाई थे, इनके 10 भाई एक माँ से थे और 2 भाई एक से, हजरत यूसुफ और बिन्यामीन ये अलग थे और 10 भाई अलग थे। इन शैतान इंसान दुमुबिन, बेशक शैतान इंसानों के लिए दुश्मन है। वो कजाली का ये जो तबीका, और इसी तरह चुन लेगा तुझको तेरा रब और सिखाएगा तुझको बातों का मतलब, बातों की तह तक पहुंचना, और पूरा कर देगा अपनी नेमत को जो तुझ पर और आले याकूब पर है, जैसा कि इसने पूरा किया तेरे दोनों बापों पर, इससे पहले इब्राहिम और इसहाक पर। बेशक तेरा रब इल्म वाला, हिकमत वाला है। यानी वो ख्वाब को समझ गए उनके वालिद साहब हजरत याकूब, उन्होंने ख्वाब की तावील बताई कि तुझे नबूवत मिलने वाली है यूसुफ, और जैसे कि इब्राहिम और इसहाक को मिली, तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा, बाप तो वो थे तुम्हारे दादा और परदादा को मिली, तो वही नबूवत तुम्हें भी मिलने वाली है। उन्होंने तावील बताई। आयत नंबर 3, लक़द काना फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलिन, बेशक तहकीक यूसुफ के लिए, यूसुफ के किस्से में और इसके भाइयों के किस्से में अलबत्ता निशानियां हैं सवाल करने वालों के लिए। आयत नंबर 8, इस कालू ला यूसुफ व अखू, और जब उन्होंने कहा बिलाश, अब इसके भाइयों के डायलॉग्स हैं, उनके भाइयों ने कहा कि यूसुफ और इसका भाई बिन्यामीन, ठीक है, 2 भाई जो एक माँ से थे, अहब्बु इला अबीना, ज्यादा महबूब है हमारे अब्बू को, बनिस्बत हमारे, हालांकि हम तो एक जत्था हैं, हम उसबा हैं। उसबा कहते हैं मजबूत जमात को, जो आपस में एक हो, यानी बड़े मजबूत ग्रोह, वैसे भी खूबसूरत थे, लंबे चौड़े थे, मजबूत थे, बड़े भी थे। कह रहे हम ज्यादा हकदार हैं कि हमें मोहब्बत करें। असल में हजरत याकूब को इसलिए भी ज्यादा मोहब्बत थी, मुफस्सिरीन कहते हैं कि हजरत यूसुफ का इखलाक और किरदार बहुत अच्छा था। लेकिन यह आप बताइए मेरे अब्बू जान, जिसका इखलाक किरदार होता है ना, वैसे भी बच्चों में जो आपकी बहुत खिदमत करे, आपके साथ कभी बुलंद आवाज से बात ना करे, बहुत अच्छा हो, तो आपको मोहब्बत ज्यादा होने लगती है। तो हजरत यूसुफ में ये सिफात मौजूद थी। उनका रवैया मोहसिनीन का था, हम आगे पूरे सूरा में पढ़ेंगे, मोहसिन मोहसिन आएगा उनके लिए। उक्तुलू, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, भाई कह रहे हैं कत्ल कर दो यूसुफ को या इसको किसी खाली जमीन में छोड़ दो, तो तुम्हारे बाप का चेहरा तुम्हारे लिए हो जाएगा, यानी वो हमें तवज्जो देंगे और तुम इसके बाद नेक लोग बन जाना, कौमन सालिहीन। यानी पहले गुनाह कर लो फिर तौबा कर लेंगे, इसको तो रास्ते से हटाओ। आयत नंबर 10, काला काइलुम मिनहुम, कहा एक कहने वाले ने, कहा जाता बड़ा भाई था जो यहूदा, उसने कहा ला तक़तुलू यूसुफा, यूसुफ को कत्ल ना करो बल्कि इसको किसी अंधे कुएं में डाल दो, किसी गहरी खाई में। यल्तक़ितु बादु सय्यारा, उठा लेगा इसको कोई काफिला अगर तुम हो करने वाले, किसी गहरे कुएं में या अंधे कुएं में डाल दो, उठा लेगा इसको कोई काफिला अगर हो
तुम करने वाले। قالوا या अबाना मालक ला तमन्ना अला यूसुफ, अब ये आपस में प्लान बना के अब्बू के पास पहुंचे, कहने लगे, उन्होंने कहा, ए हमारे अब्बा जान, क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते यूसुफ के मामले में? व इन्ना लहू लनासिहून, और हम तो यकीनन उसके बड़े खैर ख्वाह हैं। अरसिलहू माना गदन यरता, अब इसको हमारे साथ भेज दीजिए पिकनिक पे, वो कुछ खा पी ले, चल फिर ले, खेल कूद कर ले, और हम इसकी अलबत्ता हिफाजत करने वाले हैं। आयत नंबर 13, क़ाला इन्नी ला यहज़ुनुनी अन तज़हबू बी, हजरत याकूब ने कहा कि बेशक मुझे गमगीन करती है बात कि तुम ले जाओगे इसको, और मैं डरता हूं कि खा जाएगा इसको भेड़िया। ठीक है, उन्हें अंदाजा हो रहा था कि जानते होंगे बच्चे साथ है, माँ बाप से बढ़ के कौन जानता है कि इन बेटों की इंटेंशंस क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं, मेरे जहन में ये चल रहा है, वह अंतुम अनहु गाफिलून, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम इससे गफलत बरतोगे। आयत 14, क़ालू ला इन्ना मकलहु ज़िबु व नहनु उस्बा, उन्होंने कहा अलबत्ता अगर इसने खा लिया इसको भेड़िया, जबकि हम एक ग्रोह है, यानी हम इतने मजबूत लंबे चौड़े हैं, हम पूरा जत्था वहां मौजूद, अगर एवं यूसुफ को भेड़िया खा लेगा, मुराद ये है। इन्ना इधर लखासिरून, अगर ऐसा होता हम तो फिर बिल्कुल ही खसारा पाने वाले हो गए, यानी हम तो कुछ है ही नहीं। अब्बू ये क्या बात कर दी आपने, हमारी मौजूदगी है, वहां मौजूद है, एवं आके भेड़िया खा जाएगा। आयत नंबर 40, फलम्मा दहबू भी, तो जब वो ले गए उसको और उन्होंने इत्तेफाक कर लिया कि डालेंगे इसको अंधे कुएं में, और वही की हमने इसकी तरफ, किसकी तरफ, हजरत यूसुफ की तरफ। अलबत्ता तू जरूर आगाह करेगा इनको इनके काम के बारे में, अलबत्ता वो शऊर ना रखते होंगे। ये खुफिया इशारा था एक तरह से। और इन्होंने क्या किया था, ये एक आयत आ गई कि जब कुएं में डाल दिया तो कुएं में भी हजरत यूसुफ को ये इशारा दिया गया। वजाउ अबाहू इशाई यबकून, और वो आ गए अपने बाप के पास इशा के वक्त रोते पीटते। हजरत यूसुफ को डाला कुएं में और आगे बाप के, रात के वक्त क्यों आ रहे, रात के वक्त चेहरे नहीं नजर आएंगे, सही से पता नहीं चलेगा, इशा का वक्त होगा। और एक चीज और पता चल रही है कि बहुत सख्ती से बात करते होंगे पेरेंट्स से, कि बाप मना कर रहा है इस हद तक कि तुम गाफिल हो जाओगे इसको, फिर भी उन्होंने राजी कर लिया बाप। तो ये भी होता है जब आपके 10 बेटे सामने खड़े हों और 10 के 10 बेटे आप पे किसी चीज का जोर जबरदस्ती करें, माँ बाप मजबूर हो जाते हैं औलाद के आगे। तो वो ले गए कुएं में डाल दिया, रात को आ गए। कौलू ये आबाना, कहने लगे अब्बा जान, बेशक हम चल रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, और हम छोड़ गए थे यूसुफ को अपने सामान के पास, फिर खा गया इसको भेड़िया। वमा अंता बिमुमिन लना वला कुन्ना सादिकीन, और आप हम पर ईमान लाने वाले नहीं, आप हमको सच नहीं मानने वाले, चाहे हम कितने ही सच बोले। इन्हीं पहले उन्होंने बात ही खत्म कर दी, इससे पहले कि वो कुछ कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो, खुद ही कहने लगे हमें पता है आप हमारी बात मानेंगे ही नहीं। तो हम तो दौड़ लग का मुकाबला कर रहे थे, यूसुफ को पीछे बिठाया, भेड़िया के खा गया। वजाउ वाला कमीसी बिदमिन कदिब, और लाए थे वो इसकी कमीज पर खून झूठा, और उनके कुर्ते पे, हज़रत यूसुफ के कुर्ते पे खून लगा कर ले आए, झूठा खून। अब खून कुर्ता बाकी रहेगा, कुर्ता फट फुट के बराबर नहीं है, ये भेड़िया ये करेगा कि उनको तो खा जाएगा लेकिन कुर्ता छोड़ जाएगा, झूठ था। काला बल सवलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, तो उन्होंने कहा कि आसान कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारी नफ्सों ने एक काम को, इतने बड़े मामले को इतना मामूली बना के पेश कर दिया तुमने। मुराद ये कि एक बेटा मैंने तुम्हारे साथ भेजा, एक इंसान है, उसके साथ अल्लाह जाने तुमने क्या किया, और आके 2 जुमलों में तुमने कह दिया कि हम खेल रहे थे, वो बैठा था, भेड़िया खा गया, और आप हम पे ईमान नहीं लाएंगे, ये देख लें इसका कुर्ता। बस खत्म, इतनी सी बात, एक जान का ये सौदा कर दिया तुमने। और ये दूसरी चीज क्या है इसमें समझने की हमारे लिए भी, कि नफ्स काम को आसान कर देता है। लकुम अनफुसुकुम अमरा, जब हम सोच लेते हैं ना किसी चीज के बारे में, गलत काम के भी बारे में, लोग माँ बाप को कत्ल कर देते हैं। किस्सा में पढ़ रही थी, जायदाद के चक्कर में माँ बाप नमाज पढ़ रहे थे घर में, नमाज पढ़ते हुए कि गले पे छुरी चलाई है बेटे ने, सजदे में थी माँ, उसका गला काटा है, बाप पत्नी सो रहा था या उल्टा था कुछ ऐसे। तो नफ्स हमारा क्या करता है, ये हमारा इरादा होता है, जब हम किसी चीज का इरादा कर लेते हैं ना, तो फिर वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। अब ये नेगेटिव इरादा हो या पॉजिटिव इरादा, अगर आप इरादा कर लेंगे कि मैंने पूरे कुरान से गुजरना है, आप बड़े अच्छा वक्त है, ये रमजान आ रहे हैं, अपनी कुछ इरादा बना ले कि इस रमजान का मेरा ये इरादा है, मैंने ये हिस्सा, इतना हिस्सा हिफ्स करना है, ये मैंने इतना हिस्सा समझना है, कोई पक्का इरादा किसी चीज को लेके, और उसको बंदा कर गुजरे। फसब्रुन जमील, तो वो कहते हैं वालिद साहब, तो सब्र ही बेहतर है। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, और अल्लाह ही है जिससे मदद चाही जा सकती है इसके खिलाफ जो तुम बयान कर रहे हो, जो तुम झूठ बोल रहे हो, मैं इसको किस तरह से इसको सही गलत करूं, तुम 10 मैं एक, तुम पहले ही मुझ पे गलबा पा लेते हो। तो वल्लाहु मुस्तआन, हम अक्सर कहते हैं ना, बड़ा प्यारा लफ्ज है, इसको लिख लें कहीं, याद करें, वल्लाहु मुस्तआन। तो जब कभी दिल वो होने लगे, वैसे तो हस्बी अल्लाह पढ़ते हैं रंज और गम में, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है ना, आप कोई काम कर रहे होते हैं, परेशानी होती है, आप लगी हुई, तो आप बोला करें वल्लाह मुस्तान, और अल्लाह ही है जिससे मदद चाही जा सकती है। यानी एक अंदाज है ये कहने का, ये अल्लाह मेरी मदद फरमा। वजह आज सैयारा, और आ गया, अब वो कुएं के पास क्या आ गया, एक सैयारा आ गया, काफिला आ गया, तो उन्होंने भेजा अपना पानी पिलाने वाला, तो इसने डाला अपना डोल,
ठीक है, पानी ढूंढने के लिए उन्होंने ढूंढ डाला कुएं में। काला या बुशरा, वो बोला वाह खुशखबरी, हादा गुलाम, ये तो एक लड़का है। वासा रूह भी दआ, और उन्होंने छुपा लिया इसको माले तिजारत समझ के। उस वक्त लोगों को किडनैप करके भी और वैसे भी बेच दिया जाता था लौंडी गुलाम की हैसियत से, तो वो खुश हो गया, चलो माल आ गया। वल्लाहु अलीम बिमा यामलून, और अलबत्ता अल्लाह इल्म वाला है इसके साथ जो वो कर रहे थे। वो शराउ भी समनिन बख्स, और उन्होंने बेच डाला इसको। अब वो मिस्र ले जाते हैं काफले वाले, और उनको छुपा छुपा के ले गए। दो आदमी थे, मुफस्सिरीन बयान करते हैं, जो पानी डाला, पानी के लिए उन्होंने डोल डाला, उन्हें काफले वाले से छुपा लिया उसको, और जाके बेच दिया उनको दराहिम मादूदा, बहुत गिने चुने दरम। मुफस्सिरीन कहते हैं 20 दरम थे जिसमें इनको बेच दिया गया। वकानु फीही मिन जाहिदीन, और वो इसके बारे में बेरगबत थे, उन्हें पता ही नहीं था यह मुस्तकबिल का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट का बेटा है, इसका बाप नबी, इसका दादा नबी, इसका परदादा नबी, ये क्या बच्चा है। और उसको वो 20 दरम के अंदर कानू मिन जाहिदीन, पता ही नहीं चला क्या करके चले गए, बेच के चले गए। वकाल लजीश तराहु मिनल मिस्र, कहा इस शख्स ने जिसने खरीदा था मिस्र से, अजीज मिस्र था, वजीर माल था, ये उसने खरीदा उनको। उन्होंने अपनी बीवी से कहा अक्रीमी मसवाह, बाइज्जत रखो, बाइज्जत ठिकाना दो इसको, उम्मीद है कि नफा देगा हमको, या हम बना ले शायद इसको बेटा। और इसी तरह ठिकाना दिया हमने यूसुफ को, यानी उनका शायद अपना बेटा नहीं था ना, वो एक हजरत यूसुफ की पर्सनैलिटी भी थी। तो उन्होंने देख के कहा कि इससे आम गुलामों जैसा काम नहीं लेना, इसको जरा इज्जत के साथ रखना, हम हो सकता है इसको बेटा ही बना ले। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इसी तरह ठिकाना दिया हमने यूसुफ को जमीन में, ताकि हम सिखाएं इसको बातों की मतलब बेसे, और अल्लाह ताला गालिब है ऊपर अपने फैसले के, लेकिन अक्सर लोग नहीं इल्म रखते। तो अल्लाह ताला ने अच्छे घर भिजवाया उन्हें, वजीर माल थे, इलीट क्लास थी, कोई कॉमन बंदा भी खरीद सकता था, एक बड़े अच्छे शख्स ने खरीदा जिसके घर का इंतजाम और माहौल यकीनन बहुत अच्छा होगा। और फिर वहां पे भी उसको आम गुलामों की तरह नहीं रखा जा रहा, कहा जा रहा है कि इनको इज्जत के साथ रखना है। और ये जो लफ्ज आ रहा है ना आयत नंबर 21 में, देखिए वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह गालिब है अपने फैसले पर। ये 100% है। आप जिंदगी में माजी में झांक के देखें, कितनी ऐसी चीजें होंगी, अल्लाह ने जब कोई काम करवाना होता है ना, अल्लाह असबाब बना देते हैं, और बंदा सोचता है कि ये सबब बन गया तो मैंने ये कर लिया, सबब ना बनता तो मैं ना करती। तो अल्लाह ताला जब जो काम करवाना चाहते हैं, अल्लाह ने उनको अच्छा माहौल देना था, अल्लाह ने असबाब बना दिए उनके लिए। वलकिन अक्सर नासिल यालमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। वलम्मा बलगा अशुद्धा, और जब पहुंचा वो अपनी जवानी को, दी हमने इसको कुव्वत फैसला और इल्म। वकज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन, और इसी तरह हम जज़ा देते हैं एहसान करने वालों को। मोहसिनीन आ गई सिर्फ, ठीक है। तो ये हजरत यूसुफ के लिए बार बार आएगी। वरा वरा वदत कुल्लती हुआ फी बैती अन नफ्सी, और फिसलाना चाहा इसको इस औरत ने जिसके घर में वो थे, इसके नफ्स से, ठीक है। वगल्लकतिल अबवाब, और बंद कर लिए दरवाजे, चटखनी लगा ली, बंद करना। वकालत हैत लक, और कहने लगी आ जाओ, यानी बुराई की दावत दी, कम ऑन, वो जो है ना अंदाज वो वाला। ये दरवाजे बंद कर लिए, जिसके साथ तन्हाई में थी, दरवाजे बंद कर लिए, और कहने लगी कम ऑन। काला माअज़ल्लाह, हजरत यूसुफ ने कहा अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसना मसवई, बेशक मेरा रब, इसने अच्छा ठिकाना दिया मुझको। दोनों मुराद हो सकते हैं, उसका शौहर भी मुराद हो सकता है कि मेरे आपके शौहर मेरा रब है, मैं उसके साथ खयानत कर गुजरूं, और अल्लाह भी मुराद हो सकते हैं। इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून, बेशक वो नहीं फला पाते जो जालिम हो। वलक़द हम्मत बी, और अलबत्ता इस औरत ने हजरत यूसुफ का इरादा कर लिया था कि वो जरूर उससे ये काम करवाएगी। वह हम्मा बिहा, और यूसुफ भी इसका इरादा कर लेता। लौला अर्रा बुरहान, और रब्बी, अगर वो ना ले देखता बुरहान अपने रब की। बुरहान से मुराद ये है कि नूर है, कोई वाज़ेह दलील थी, हकीकत अल्लाह को ही बहरहाल पता है। मुख्तलिफ वो तफासिर बयान की जाती हैं कि उन्हें कहीं किसी दीवार पे अपने बाप की तस्वीर का साया सा नजर आ गया, कोई रोशनी नजर आई, बहरहाल अल्लाह ताला ने रोक लिया। सीधी सी बात है, हजरत यूसुफ भी इंसान ही थे, तो अल्लाह ताला ने स्पेशली उनको प्रोटेक्ट किया। वही पीछे के अल्लाह अपने अमर पे गालिब है। वरना वो औरत है, हसीनो जमील होगी यकीनन, और वो अजीज मिस्र की बीवी है, कोई एवं ही तो बीवी नहीं होगी, इज्जत जमाल वाली बीवी है। तो वो दरवाजे बंद है, और वो खुद कह रही है, खुद पीछे पड़ रही है। तो हम्मद हम्मा बिहा, वो भी इरादा कर लेता उसका, अगर अल्लाह बुरहान ना दिखाता, तो अल्लाह ने उनको बचाया। ये वही बात हो गई, अल्लाह अल्लाह है और बंदा बंदा है। कदालिक लिनस्रिफ अन्हु सूअ वल फहशा, और इसी तरह हम ताकि फेर दें इससे बुराई को और बेहयाई को। इन्नहु मिन इबादिनल मुखलिसीन, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था, ठीक है। वस्तबकल बाब, और वो दोनों बड़े दरवाजे की तरफ वो भागे, हजरत यूसुफ आगे आगे, पीछे बीवी भाग रही है। वक़द्दत कमीसहु मिन दुबुर, और इसने फाड़ डाला इसका कुर्ता, इसकी कमीज पीछे की तरफ से, पीछे से पकड़ा होगा हजरत यूसुफ को, तो पीछे से कुर्ता फट गया। वह अल्फाया सदा सैयदहा लदल बाब, और उन दोनों ने पाया इसके शौहर को दरवाजे के पास। दरवाजा खोला तो बाहर शौहर खड़ा हुआ है। क़ालत मा जज़ाउ, इससे पहले कि हजरत यूसुफ कुछ कहते, कहने लगी क्या बदला हो सकता है जो इरादा करे तेरी घरवाली के साथ बुराई का, मगर ये कि कैद किया जाए या सजा दिया जाए दर्दनाक। क़ाला हिय रावदतनी अन नफ्सी, हजरत यूसुफ ने अपने दिफा में बोला ये फिसलाना चाहती थी मुझको मेरे नफ्स से। और गवाही दी एक गवाह ने इसके घर वालों में से। अब जब ये बात हुई कि मर्द भी वही कह रहा है, औरत भी, दोनों का बयान टकरा रहा है, तो एक गवाह को लाया गया। उसने कहा इनका ना कमीसु कुद्दम, गवाह ने देखा नहीं था। एक होता है ना, हम
हालात के हिसाब से गवाही देते हैं कि ऐसा हुआ होगा तो ये होगा और ऐसा हुआ होगा तो ये होगा। तो एक गवाह लाया गया है, इनका ना कमीज कुद्दा मिन कुबल, उसने कहा कि अगर है इसकी कमीज फाड़ी गई सामने से तो ये औरत सच्ची है और वो झूठों में से। इसका मतलब है कि हजरत यूसुफ उस औरत को पकड़ना है तो कुर्ता आगे से फटेगा हजरत यूसुफ का। वह इनका ना कमीज कुद्दा मिन दुबर, और अगर है इसकी कमीज फाड़ी गई पीछे से तो औरत झूठी और मर्द सच्चा, यानी मर्द आगे भाग रहा था ये पीछे भाग रही थी, कुर्ता पीछे से फटेगा। फलम्मा रहा कमीसा, जब देखा गया इसकी कमीज को कुद्दा मिन दुबर कि वो फटी हुई पिछली तरफ से, काला इन्नहु मिन कैदिकुन, अजीज मिस्र ने कहा तुम ये सब तुम औरतों की चाल में से है। इन्ना कैदकुन्ना अजीम, बेशक तुम औरतों की चालें बहुत बड़ी होती हैं। अपनी बीवी को तो डांट लगा दी इन्होंने, यानी मर्दों को तुम औरतों की चालें समझ नहीं आती इन शॉर्ट। अब हजरत यूसुफ क्योंकि थे तो वो गुलाम है ना, तो उनसे क्या कहा, यूसुफ आरिदन हाजा, यूसुफ इसको दरगुजर कर दो, यानी डोंट स्पीक अबाउट इट। उनकी इज्जत का मामला था, अजीज मिस्र की इज्जत का मामला था, उन्होंने हजरत यूसुफ का कोई हक देखा ही नहीं। कहने लगे इस बारे में बात नहीं करना, इग्नोर, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। बस तगफिरी ली दम्बिक, अपनी बीवी से का बख्शिश मांगो है औरत अपनी गुनाह की, क्योंकि तू ही खताकारों में से है, यानी गलती तुम्हारी है। हक फैसला कर दिया लेकिन इंसाफ नहीं किया, इन शॉर्ट बस ये कहा कि अब वो मामले में ये भी बड़ी बात है। उस जहाँ पे लौंडी गुलाम का ये हाल था, जानवरों की तरह थे, तो ये भी बड़ी बात है, उसने कह दिया। वकाला निस्बतुन फिल मदीना, लेकिन बात भाई फैल गई किसी तरह। और कहा औरतों ने शहर में अजीज मिस्र की के बारे में कि ये अपने नौजवान को, अपने गुलाम को उकसाती है, फिसलाने की कोशिश करती है। कद शगफा हुब्बा, इसलिए इतने तो बेकाबू हो गई है ये उसकी मोहब्बत में। इन्ना लनराहा फी दलालिम मुबीन, ये तो बहुत ही बड़ी गुमराही में मुब्तला हो चुकी है। फलम्मा समिअत बिमकरिहिन, तो जब इसने अजीज मिस्र की बीवी ने सुना इन औरतों के मकर को, तो इसने भेजा इनकी तरफ एक दावतनामा और तैयार किया इनके लिए तकिया लगाने की जगह, मजलिस तैयार की, दावत पे बुलाया। वातत कुल्ला वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना, और दी हर एक औरत को इनमें से एक छुरी, यानी हर तकिए लगा दिए, बैठने की जगह सब बैठ गई मजलिस में, और फल और छुरियां रख दी सामने, तो सब फलों को काटने लगी खाने के लिए। वकालत खुरुज अलैहिन्ना, और हजरत यूसुफ से कहा कि निकल आओ इन पर, यानी बाहर आ जाओ। फलम्मा राइना हूं, तो जब औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, अकबर ना, तो इसको बड़ा समझे, नहीं दंग रह गई, बहुत खूबसूरत थे, बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी थी। तो हजरत यूसुफ को देखा तो मुंह तो खुले के खुले रह गए। वक़त्ताना अयदियहुन, और काट बैठी अपने हाथों को। काट बैठी अपने हाथों से मुराद ये है कि यकीनन फल वल काट रही होंगी, लेकिन वो हम मशगूल हो जाता है ना बंदा किसी को देख के, तो इतनी मशगूल हुई हजरत यूसुफ की वजह से कि इतनी मगन हो गई उनको देखने में कि उनकी उंगलियां वगैरह कट गई, पता ही नहीं चला उन्हें। एक तो ये बयान होती है, और ये रिवायत, ये बयान, एक तफसीर ये की जाती है कि एक औरत की उंगली कटी थी, तो हजरत यूसुफ दौड़े क्योंकि गुलाम थे, तो उसकी मरहम पट्टी कुछ करने लगे। तो सारी औरतों ने देखा कि अच्छा जो उंगली काटेगा तो ये लड़का जो है उसके पास आ जाएगा। तो सारी औरतों ने अपने हाथ काट लिए कि हजरत यूसुफ उनके पास चले जाएं। तो दोनों बहरहाली बयान की जाती हैं। वकुल्ला हाशा लिल्लाहि मा हादा बशर, और कहने लगी बाकी है अल्लाह के लिए, ये तो इंसान है ही नहीं, इतना खूबसूरत, ये तो फरिश्ते जैसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत यूसुफ को मेराज पर मिले थे, और वहां वापस आकर कहा दुनिया के आधे इंसानों का हुस्न जो है ना हजरत यूसुफ के पास है। वल्लाहु अकबर। हम सोचेंगे, दुनिया में कोई अच्छा लगता है ना, आपको खूबसूरत लगता है, लड़का हो या लड़की, आपको याद रह जाता है। आपके जहन में हर कोई नहीं रहता, लेकिन जो बहुत खूबसूरत है, ये अदाकार वगैरह की बात नहीं करिए, ऐसी चलते फिरते आपकी नजर पड़ती है कि लड़कियां कभी कितनी, मतलब आप बच्चियां होती हैं 13-14 साल की, कॉलेज स्कूल की बच्चियां, कॉलेज की बच्ची कितनी प्यारी थी, बच्चे भी इतने खूबसूरत होते हैं। तो आपको अल्लाह की तरफ से दी हुई खूबसूरती होती है, कोई मेकअप नहीं किया होता, तो आपको याद रह जाती है। अब आप देखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि दुनिया के आधे इंसानों का हिस्सा यूसुफ के पास है, तो वो तो हाथ उन्होंने फिर काट लिए सही। इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये नहीं है ये मगर एक फरिश्ता। कालत फजाली कुन्नुल्लज़ी लुमतुनन्नी फी, वो कहने लगी तो ये है वो शख्स जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती थी, यानी खुद तो देखो अब तुम हाथ काट रही हो और मेरे बारे में बातें बनाती थी। और अब लगता तहकीक मैंने फिसलाना चाहा था उसके नफ्स से, तो ये बच निकला मुझसे। व इल्लम यफअल वला इल्लम यफअल मा आमरूहु लयस्जुनन्ना वला यकून मिन सागिरीन, और अगर जो मैं इसको हुक्म देती हूँ अगर ये वो नहीं करेगा मेरे साथ, तो अलबत्ता जरूर कैद किया जाएगा इसको, और अलबत्ता हो जाएगा जलील होने वालों में से। अच्छा, मेरे साथ का लफ्ज नहीं है इसमें, इस तरह से अगर, अलबत्ता अगर ना करेगा जो हुक्म देती हूँ इसको, अलबत्ता जरूर कैद किया जाएगा, अलबत्ता हो जाएगा जलील होने वालों में से। ठीक है, तो इतनी डिटाई है उसके अंदर, पब्लिक के अंदर कह रही है कि वो, मैं जो चाहती हूँ मैं इससे करवा के रहूंगी, ये उसकी डिटाई देखें। क़ाला रब्बी सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, कहने लगे हजरत यूसुफ के, मेरे रब, कैद खाना ज्यादा प्यारा है मेरे लिए उस काम की मुकाबले में जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही है। और नहीं, अगर तू नहीं फेरेगा मुझसे इन औरतों की चाल को, तो मैं माइल हो जाऊंगा इनकी तरफ और मैं हो जाऊंगा जाहिलों में से। फस्तजाबा लहू रब्बु, आयत 34, तो दुआ कबूल कर ली इसके लिए इसके रब ने, दूर कर दी इनसे इन औरतों की चाल, बेशक वो सुनने वाला और जानने वाला है। तो क्या हुए, हजरत
यूसुफ ने चॉइस में कहा कि मैं कैद खाना जाना पसंद करूंगा, ये जो औरतें आला तबके वाली खवातीन, इनके बदले में। तो बगैर किसी, क्योंकि आप गुलाम थे, तो बगैर किसी रेजिस्टेंस के आपको जेल भेज दिया गया, जेल चले गए। सुम्मा बदालहुम मिन बाद, फिर वो जाहिर हो गई इनके लिए इसके बाद जो उन्होंने देखी निशानी, अलबत्ता वो जरूर कैद कर देंगे इसको। पहले ये कैद क्यों भी भेजा गया, ये भी थी कि मामला तो अजीज मिस्र ने सोचा बढ़ता ही जा रहा है, मैं क्या करूं, ये तो मेरी बीवी की ढिठाई की हद ही हो गई है। तो बेहतर ये यूसुफ को दूर करने का तरीका यही है कि इसको कैद में डाल दिया जाए। तो हजरत यूसुफ वाली बात सब जगह फैल चुकी थी, कैद में चले जाएगा, वो होता है ना, एक खबर चलती है ब्रेकिंग न्यूज, दूसरी आती है तो पहली खत्म हो जाती है। तो बस इसको मंजर से हटा दो, कोई दूसरी खबर इसकी जगह ले ले। वदखल माउ सिजन, अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में, तो दाखिल हुए इनके साथ कैद खाने में दो गुलाम। कहा इन दोनों में से एक ने, बेशक मैं देखता हूँ कि मैं निचोड़ रहा हूँ शराब को। और कहा दूसरे ने कि बेशक मैं देखता हूँ खुद को कि मैं उठाए हुए हूँ अपने सर पर रोटी, और उस रोटी को परिंदे खा रहे हैं। हमें तावील बताओ इसकी हमें बताओ इसकी ताबीर। बेशक इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम तुम्हें मोहसिनीन में से देखते हैं। यानी जो जेल में थे उनके साथ इतना अच्छा रवैया है हजरत यूसुफ का कि वो भी उनको मोहसिनीन कह रहे हैं। आयत नंबर 37, क़ाल ला यातीकुमा तआमुन तुरज़क़ानी, उसने कहा कि नहीं आएगा तुम दोनों के पास खाना जो तुम खाते हो, मगर ये कि मैं तुम्हें बता दूंगा तुम दोनों को इसकी ताबीर, इससे पहले कि वो खाना तुम्हारे पास आए। ये इसमें से है जो मुझको सिखाया नहीं है, जो ताबीर का इल्म है, ये मैं कोई काहिन नजूमी नहीं हूँ, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये एक इल्म है। इसमें से जो सिखाया मुझको मेरे रब ने, बेशक मैंने छोड़ दिया मिल्लत को, एक कौम की जो ईमान नहीं रखती अल्लाह पर, और वो आखिरत के साथ भी ईमान, आखिरत के भी वो काफिर हैं। यानी जो जिस मौजूदा माशरे में जो तरीके हैं, ये इस इन तरीकों पर मैं नहीं चलता, मैं कोई काहिन नजूमी नहीं हूँ, ये खास इल्म है जो मुझे मिला है। कहाँ से? मेरे रब ने मुझे सिखाया। आयत 38, वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहिम और इसहाक, और मैंने पैरवी की मिल्लत की अपने आबा की, इब्राहिम की, इसहाक की और याकूब की। और नहीं है हमारे लिए कि हम शरीक ठहराएं अल्लाह के साथ किसी चीज को, ये अल्लाह के फजल में से है हम पर और लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते, नहीं तबलीग कर रहे हैं। वहां पर उन्हें पहले तावील बताने से पहले तबलीग की। फिर अब बात करते हैं, या साहिब ये सिजन, ए मेरे साथियों, कैद खाने के दोनों साथियों, क्या बहुत से रब मुख्तलिफ किस्म के बेहतर हैं या एक अल्लाह जो एक जबरदस्त है? मा ताबुदूना मिन दुनी इल्ला अस्मा 40, नहीं तुम इबादत करते इसके सिवा मगर कुछ नामों की जो तुमने खुद रख लिए हैं, तुमने भी और तुम्हारे बाउजदाद ने भी, जिनकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई दलील नहीं उतारी। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, नहीं है फैसला मगर अल्लाह ही के लिए। अमरा अमरा अल्लाह, इसने हुक्म दिया कि ना तुम इबादत करो मगर सिर्फ इसी की। जालिका दीनुल क़य्यिम, ये दीन है दुरुस्त, वलाकिन्न अक्सर नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। तो यालमून इल्म, तौहीद के लिए भी इल्म का जरूरत है, अकल समझ तौहीद सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, अकल समझ से भी काम लेना पड़ता है, फिर इल्म भी हासिल करें तो पुख्ता हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं तौहीद पे। बिदअत से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप? इसी से तो करते हैं डिफरेंशिएट, कि आप अकल से काम लेते हैं और इल्म हासिल करते हैं, हदीस पढ़ते हैं कि हाँ ये चीज है, आपसे सबने की है तो मैं भी कर लेता हूँ, नहीं की तो मैं नहीं करूंगा। या साहिब ये सिजन, ए जिंदान के, ए जेल के दोनों साथियों, रहा तुम दोनों में से एक, बस वो पिलाएगा अपने आका को शराब, लेकिन दूसरा वो सूली चढ़ाया जाएगा तो इसके सरों को परिंदे खाएंगे। खुद ही अमर, फैसला कर दिया गया मामले का, वो जो जिससे तुम दोनों जवाब मांगते थे। आयत 42, वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिब मिनहुमा, और कहा इसने कि जिसने सोचा था कि वो निजात, कहा हजरत यूसुफ ने उस शख्स से जिसके बारे में गुमान किया कि ये निजात पाने वाला है, उसकुरनी इंदा रब्बक, जिक्र करना मेरा अपने आका के पास। अंसाहु शैतान, तो भुला दिया इसको शैतान ने जिक्र करना अपने आका को, तो ठहरा रहा कैद खाने में चंद साल। यानी बंदा आजाद हो गया, अपने आका के पास साथी होगा, वो शराब पिलाता होगा, तो वो अपनी ड्यूटी पे वापस ज्वाइन कर ली उसने, लेकिन वो हजरत यूसुफ का जिक्र करना भूल गया। वकाल अल मलिकू, और कहा बादशाह ने, बेशक मैं देखता हूँ 7 गायें। अब बादशाह को एक ख्वाब नजर आता है, क्या? वो देखता है कि 7 गायें मोटी खा रही हैं, इनको 7 पतली खाएं, मोटी 7 गायें हैं, उनको 7 पतली गायें खा रही हैं, और 7 बालियां हैं सरसब्ज और दूसरी 7 बालियां हैं खुश्क। जो गंदुम के सिट्टे या बाली होती है ना, जो चावल की बाली होती है जिसमें बहुत सारे दाने होते हैं, उसको बाली कहते हैं। तो 7 खुश्क हैं और 7 सब्ज हैं। या अय्युहल मला, ए अहले दरबार, जवाब दो मुझको मेरे ख्वाब के बारे में, अगर तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो। 44, कालू अदगासु अहलाम, दरबारियों ने कहा, ये जो ख्वाब की ताबीर बताते थे उसके दरबार में से कहने लगे, अदगासु अहलाम, ऐसी खलत मलत से ख्वाब देख ली आपने, गुडमुड से ख्वाब है। वो नहनु बितावीलिल अहलामी आलिमीन, और हम ख्वाबों की ताबीर जानने वाले नहीं है, मतलब हमें नहीं पता ये क्या देख लिया आपने, या तो दरबार में कोई मौजूद ही नहीं था जो ख्वाबों की ताबील बताता होगा, या अगर बताने वाले भी थे या दरबार वाले भी थे, बजाय ऐसा लगता है कि कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि उन्होंने अहले दरबार करके मुखातिब किया है। तो दरबार के लोगों से ही पूछा होगा कि मुझे ताबीर बताओ, उन्होंने कहा हम तो ताबीर का इल्म तावील का इल्म जानते नहीं है, और आपके ख्वाब तो हमें
गुड मूड से लग रहे हैं। वक़ाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा, और कहा इस शख्स ने जो उन दोनों कैदियों में से निजात पा चुका था और इसने याद किया एक मुद्दत के बाद, अब उसको एकदम से हज़रत यूसुफ याद आया, कहने लगा अना उनब्बिउकुम बितावीली, मैं बताता हूँ तुमको इसकी ताबीर, बस भेज दो मुझको, यानी मुझे जेल भेजो। यूसुफा, अब वो जेल आके कहता है यूसुफा अय्युहा सिद्दीक, ए यूसुफ, ए सरापा सच्चाई। पहले मोहसिन कहा था, अब सरापा सच्चाई कह रहे हैं। हजरत यूसुफ का अखलाक बहुत बेहतरीन था, हर नबी का होता है बेहतरीन, लेकिन यहाँ बकायदा मेंशन हो रहा है इस तरह से। अफ्तीना फी सभी बकरातिन सिवानी याकुलून सबउन इजाफ, जवाब दो हमको कि 7 गायों के बारे में जो मोटी हैं, खा रही हैं इनको, 7 दुबली पतली गायें, और 7 बालियां हैं सरसब्ज और दूसरी खुश्क, ताकि मैं लौटूं लोगों की तरफ, शायद कि वो जान ले। काला तजराउन सबअ सबअ सिनीना दआबा, आयत 47। हजरत यूसुफ ने कहा कि तुम खेती बाड़ी करोगे 7 साल कंटिन्यूअस, दआबा मुतवातिर, कंटिन्यूअस खेती बाड़ी करोगे, तो जो तुम काटोगे तो छोड़ देना इसको इसकी बाली में, मगर थोड़ा इसमें से जो तुम खाते हो। सिर्फ ताबील नहीं बता रहे, ताबील नहीं बता रहे, ताबीर और तावील दोनों मिल जाते हैं बार बार। ताबीर नहीं बता रहे ख्वाब की, बल्कि क्या बता रहे हैं, साथ साथ हल भी बता रहे हैं कि जब वो बालियों में ही होगा तो 7 साल मुस्तकिल जो है बड़ी अच्छी फसल होंगी, तो तुम थोड़े दाने खाना, और गंदुम या चावल जो भी है या बाजरा सब सिट्टों में होते हैं, उसको निकालना नहीं, उसको उन्हीं में सिट्टों में ही छोड़ देना बाकी को, ताकि अच्छी तरह प्रिजर्व रह सके, कीड़ा ना लगे। सुम्मा याती में बादी दारी का सबउन शिदात, फिर आएंगे इसके बाद 7 सख्त साल, खा जाएंगे जो पेश करोगे तुम इनमें से, मगर थोड़े इसमें से जो तुम रोक रखोगे, यानी जितना तुम गल्ला जमा करोगे वो आगे 7 साल कहत के आएंगे, उसमें तुम वो खाना। तुम याती में बादी दालिक, फिर आएगा इसके बाद 1 साल, इसमें युगासुम नास, फरियाद रसी की जाएगी, यानी खूब बारिश होगी, और इसमें वो रस निचोड़ेंगे, यानी खूब दूध फल खूब आएंगे, अगला साल बहुत जबरदस्त होगा। वकाल अल मलिक, और कहा बादशाह ने इसको मेरे पास ले आओ। अब वो बंदा ख्वाब की ताबीर लेके आता है बादशाह के पास, बादशाह बड़ा मुतासिर होता है, कहता है इसे मेरे पास ले आओ। फलम्मा जाअहु रसूल, तो जब आया इसके पास पैगाम लाने वाले, जेल में आया, क़ाल अर्जी इला रब्बिका फस्अलहु मा बालुन निस्वति लती क़त्तअना अयदियहुन, तो हज़रत यूसुफ ने कहा कि वापस जाओ और अपने आका के पास और इससे पूछो कि क्या हाल है उन औरतों का जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। यानी वो एक दाग धब्बे के साथ, दाग के साथ जेल से बाहर नहीं आना चाहते थे। उन्हें जब डाला जा रहा था जेल में, बेगुनाह डाला गया ना, औरतों का कसूर था, सिर्फ मामले को दबाने के लिए जेल में डाल दिया गया। तब वो जब जेल से बाहर आ रहे हैं, उन्होंने कहा ठीक है, हजरत यूसुफ ने तो उसको कहा वो कि किस सेंस में, कि मैं इन औरतों के मकर में ना पड़ जाऊं, या अल्लाह तेरा फैसला, ठीक है मैं जेल चले जाता हूँ। लेकिन हुई तो उनके साथ नाइंसाफी थी ना, तो उन्होंने कहा कि जरा बादशाह से पूछो तो, मतलब मेरा केस, मेरी फाइल खुलवाएं दोबारा, और जरा मेरे इन्वेस्टिगेशन करवाएं, मुराद ये है। इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम, बेशक मेरा रब इनकी चाल से वाकिफ है। क़ाल मा खत्बुकुन्ना इज़ा रावत्तुन्ना यूसुफ़ अन नफ्सी, अब बादशाह तो बादशाह है ना, वो तो अजीज था। अब ये था बादशाह, इसने बुलाया औरतों को खड़ा किया लाइन से और पूछा, जरा बताना क्या मामला है तुम्हारा, जब तुम सब ने फिसलाना चाहा यूसुफ को उसके नफ्स से। कुल्ला हाशा लिल्लाह, कहने लगी पाकी है अल्लाह के लिए, मा अलिमना अलैहि मिन सू, हमने इसमें कोई बुराई नहीं जानी। अब बिल्कुल सच्ची गवाही देती है। क़ालत इमरात, कहने लगी बीवी अजीज की, अब वाजे हो गया हक, मैंने फिसलाना चाहा था उसको उसके नफ्स से, और बेशक अलबत्ता वो सच्चों में से है। ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुन, ताकि वो जान ले, यानी मेरे शौहर को पता चल जाए कि मैंने इसकी खयानत नहीं की, यानी ये यूसुफ बड़ा मजबूत था, तो कोई उसकी इज्जत में खयानत हो नहीं सकी। बिलगैब, गायबाना तौर पर, यानी इसके पीछे मैंने कभी खयानत नहीं की अपने शौहर के पीछे, क्योंकि यूसुफ ने कभी मुझे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। इन शॉर्ट ये, वल्लाहु ला यहदी कैदल खाइनीन, और बेशक अल्लाह ताला नहीं रहनुमाई करता खयानतकारों की, खयानतकार के चालों की। जी, 13वां बार हमारा शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वमा उबर्री नफ्सी, और नहीं मैं बरी जिम्मा करता अपनी नफ्स को, या तो औरत ने कहा, या हजरत यूसुफ के डायलॉग भी हो सकते हैं। इन नफ्स अम्मारातुम बिस्सू, बेशक नफ्स अलबत्ता हुक्म देता है बुराई का, मगर इसको जो रहम, मगर सिवाय इसके जिस पर मेरा रब रहम करे। यानी नफ्स के शर से, नफ्स 3 होती है ना, अम्मारा है, एक लव्वामा है, और मुतमइन्ना है। मुतमइन्ना 30वें पारे में, लव्वामा 29वें पारे में, अम्मारा यहाँ पे। नफ्स मुतमइन्ना क्या होता है, नफ्स से एक होती है अम्मारा, पहली ये हुक्म देती है बुराई का, ठीक है। एक ही नफ्स है, 3 पहलू कह लें, 3 सोच कह लें, 3 तरह की नफ्स कह लें, जैसे भी इसको नाम दे लें, तो वो आप बुराई का ख्याल डालती है। तो बंदा या तो बुराई कर गुजरता है, कर गुजरता है तो नफ्से लवामा आ जाती है, मुलामत करती है, क्यों किया, ये गलत काम था। तौबा कर लेता है तो नफ्से मुतमइन्ना की तरफ चला जाता है। ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है, हमारा ने बुराई का हुक्म दिया और आपने बहुत लड़ाई की कि मैंने नहीं करना है ये काम, तो जब वो एक असल में एक जोश होता है कुछ टाइम का, फिर आप जब अपना इरादा कर लेते हैं ना, जो पीछे डायलॉग आया था कि तुम्हारे नफ्स ने बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, इस तरह के अल्फाज थे,
تو तुम्हारी नफ्स ने तुम्हारे लिए आसान कर दिया। तो जब हम पक्का इरादा कर लेते हैं तो वो एक जो जोश बन रहा होता है ना अंदर की, ये गलत काम करना है, ये गुनाह करना है, ये गीबत करनी है, बात बुरी लग गई बतानी है, किसी को फोन करना है, वो कुछ लम्हों का ही होता है। तो जब बंदा अपने आप से जम के कहता है नहीं मैं नहीं करूंगी, तो वो एकदम से जब दूध में उबाल आता है ना, दूध बैठ जाता है, तो ये नफ्स का जोर बैठ जाता है, तो नफ्स से मुतमइन्ना बन जाता है बंदा। दोनों कंडीशन में तीन नफूस हैं। तो हजरत यूसुफ के अगर डायलॉग है तो वो कह रहे हैं कि बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देता ही है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस पर रहम करे वो बच जाता है। वकाल अल मलिक, आयत नंबर 54। और कहा बादशाह ने मेरे पास लाओ इसको, मैं खालिस कर लूं इसको अपनी जात के लिए। यानी पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी जो होती है, या बिल्कुल करीब जो होते हैं, कोई दायां हाथ कह लें जिसे, वो मैं इसको बना लूं, तो बड़े काम का बंदा है। फलम्मा कल्लमा हूँ, तो जब इसने कलाम किया इससे, कहा इन्ना कल यौम लदैना मकीनुन अमीन, तो बादशाह कहता है जिससे कि आज के दिन तुम हमारे नजदीक बड़े मर्तबे वाले हो और बड़े अमानतदार हो, यानी मैं तुम्हें किसी हाई पोस्ट में अपॉइंट कर रहा हूँ। क़ाल इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, इसने कहा मुकर्रर कर दीजिए मुझको ऊपर जमीन के खजानों के, बेशक मैं हिफाजत करने वाला हूँ, इल्म रखने वाला हूँ। एक बंदा गुलाम है, जेल से निकल कर आ रहा है, सालों काट कर आ रहा है, और वो बादशाह के दरबार में आता है। बादशाह के दरबार में दरबारी बैठे हुए हैं सारे, और वो बंदा जिसके पीछे कोई एजुकेशन नहीं है, और पीछे चले जाए एक देहात से, किनान से उठकर आ रहा है, बैकग्राउंड तो यही है ना बेसिकली, क्योंकि दुनिया की बात है ना। वैसे तो उनका मुर्तबा बाप पैगंबर, दादा पैगंबर, परदादा पैगंबर, उसके तो क्या ही कहने, लेकिन ये तो बादशाह, तो कोई दुनिया के हवाले से इस बंदे के हवाले से, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से आप कॉन्फिडेंस देखिए उनका। वो कहते हैं मैं तुम्हें पॉइंट कर रहा हूँ, तो वो खुद कहते हैं कि मुझे ये वाली पोस्ट चाहिए, मुझे ये बनाया आप। दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। जॉब लेने के लिए इस कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, जॉब है ये। दूसरी बात ये कि आप में जो अहलियत हो उस तरह की जॉब आप मांग सकते हैं। तीसरी बात, नॉन मुस्लिम्स के अंडर भी आप काम कर सकते हैं। और कदाली का मकन्ना ली यूसुफ, और इस तरह इक़्तिदार दिया हमने यूसुफ को जमीन में, ये था बव्वा जगह बनाए इसमें से जहां चाहे। तो बादशाह ने जॉब नहीं दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने मैंने उसे ठिकाना दिया जमीन में, इस तरह जिस तरह चाहे जहां चाहे। यानी फुल आजादी मिल गई। पहले गुलाम थे, पहले जहनी तौर पे परेशान थे। बीवी जो है, ये तो एक वाकया बयान हुआ ना कि इस तरह हाई तलक कहा उसने, न जाने किस किस जगह कैसे तंग करती होगी। तो जहनी तौर पे भी परेशान थे, और अल्लाह ताला ने कहां से कहां पहुंचा दिया। नसीब बिरहमतिना मन नशा, हम पहुंचाते हैं अपनी रहमत से जिसको हम चाहते हैं, और नहीं हम जाया करते मोहसिनीन का अजर। वला अजरुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और अलबत्ता अजर आखिरत का बेहतर है इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं और वो तकवा इख्तियार करते हैं। वजह इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहु हम लहु मुनकिरून, और आए यूसुफ के पास उसके भाई, फिर वो दाखिल हुए इस पर। फअरफहum, तो उसने पहचान लिया उनको, और उसके लिए इनकार करने वाले थे। 7 साल जब कहत आया तो हजरत यूसुफ ने गल्ला स्टोर किया, और वो थे भी, ये जो माल के ऊपर मिनिस्टर होते हैं वो थे, वजीर थे, जो माल की कितना जाएगा कितना आएगा और ये सारा कुछ, फसलें वगैरह ये सारा वो देख रहे थे, खजाइन उल अर्थ पे थे। तो जब कहत शुरू हुआ तो अब मिस्र वालों ने खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। तो वो अपने लिए भी उनके पास था, और उन्होंने तो फिर ये किनान बराबर में, ये फलस्तीन, फलस्तीन से उनके भाई आए। अब वो जवान हो चुके थे, बड़े हो चुके थे, अजीज बने हुए थे, तो उनको पहचाना नहीं। वलम्मा, तो जब जहाज़हुम बिजहाज़ी, में उन्होंने तैयार किया इनके साथ इनका सामान, बोला लाना मेरे पास अपने भाई को जो तुम्हारे बाप में से है। तो हजरत यूसुफ ने उनको कहा, वो तो पहचाने नहीं। तो जब वो गल्ला लेकर जाने लगे तो सिर्फ 10 भाई थे ना, 11वां नहीं था। तो कहने लगे तुम्हारा एक भाई जो है ना तुम्हारी बाप से, नहीं माँ उसकी दूसरी है, बाप तुम्हारा ही, उसको लेकर आना अगली दफा। असल में एक फैमिली के लिए एक ऊंट गल्ला था, ऐसा नहीं था कि सारे ही बेच दें, तो एक कानून बनाया हुआ था। 10 ऊंट लेके जा रहे थे, उन्होंने कहा अपने भाई को भी लेकर आना, एक ऊंट उसका भी गल्ला मिलेगा। अल्लाह तरौना अन्नी ऊफिल कैला वाना खैरुल मुंजिरीन 59, और क्या तुम देखते नहीं हो कि मैं पूरा पूरा देता हूँ पैमाना, और मैं बेहतरीन मेहमान नवाजू। पर लम तातूनी बी, फिर अगर तुम ना लाए इसको मेरे पास, फला कहले लकुम इंदी वला तकरबून, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, मेरे पास ना आना। यानी अगले साल जब आओगे गल्ला लेने के लिए, तो फिर क्या करना, उसको लेकर आना, वरना तुम्हें भी गल्ला नहीं मिलेगा। आयत 61, कालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफाइलून, उन्होंने कहा अनकरीब हम कायल कर लेंगे इसके बारे में इसके बाप को, और अलबत्ता हम दोनों हम करने वाले हैं। यानी वालिद साहब ने नहीं आने दिया होगा ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो मामला हुआ। तो लाल वकाल अली फितयानिही जअलू, और कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम को, फिर रख दो इनकी पूंजी, यानी जो पैसे उन्होंने दिए होंगे गल्ला खरीदने के लिए, फिर रिहालिहिम, इनकी खुर्जियों में, यानी वापस इनके सामान में इनके पैसे रख दो, शायद कि वो उसको पहचान जाए, जब वो पलटे अपने घर वालों की तरफ, वो शायद कि वो लौट आए। यानी कहत का जमाना है, अल्लाह जाने इनके पास पैसे जमा हो पाए ना हो पाए अगले साल आने के लिए, या अगली दफा आने के लिए, जो भी टाइम था, साल था या
कुछ खास टाइम था, वॉट एवर इट वॉज, तो तुम इनके पैसे वापस रख दो ताकि ये आ सके आराम से। फलम्मा रजाऊ, आयत 64, तो जब वो लौटे अपने बाप की तरफ, उन्होंने कहा ए हमारे अब्बा जान, रोका गया हमसे गल्ला, तो भेज दीजिए हमारे साथ हमारे भाई को, हम गल्ला लाएं और बेशक हमारा हिफाजत करने वाले हैं। उन्होंने जाके बता दिया हमें गल्ला नहीं मिलेगा, अब जो है हमें लेके जाना पड़ेगा बिन्यामीन को। क़ाल हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा आमिनतुकुम अला अखी मिन क़ब्ल, उनके वालिद ने कहा कि मैं भरोसा कर लूं तुम पर इस मामले में, मगर जैसा मैंने भरोसा किया था तुम पर इसके भाई के मामले में इससे पहले, यानी धोखा खा चुका हूं, अब तुम मुझसे उम्मीद रखते हो मैं तुम पर दोबारा भरोसा करूं। वल्लाहु खैरुन हाफिजा, पस अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। यानी भेजना तो था, पहले ही उन्होंने ओवरकम कर लिया था बातों से, तो भेजना तो था, तो उन्होंने कहा मैं तुम पे भरोसा नहीं कर रही, जो तुम कह रहे हो इन्ना लहू लहाफिजुन, मैं अल्लाह पे भरोसे के साथ उसको तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। फलम्मा फतहू, और जब उन्होंने खोला अपना सामान, उन्होंने पाया अपना सरमाया लौटा दिया गया है इनकी तरफ। उन्होंने कहा ए हमारे अब्बा जान, क्या हम मदद चाहते हैं, और ये हमारी पूंजी है हमारी तरफ लौटाई गई है, और हम गल्ला लाएंगे अपने घर वालों के लिए, और हम हिफाजत करेंगे अपने भाई की, और हम ज्यादा लाएंगे ऊंट भर गल्ला। ये गल्ला तो बहुत ही आसान है, मतलब गल्ला भी मिल गया, कहत का जमाना है, पैसे भी मिल गए, तो खुशी हो गई। उन्होंने कहा अब तो जोश जज्बा, यानी हजरत यूसुफ ने जिस प्लानिंग के तहत सामान वो रखवाया था वो पूरा हो गया। काल अला नुरसिलहु माअकुम, कहा हरगिज नहीं मैं भेजूंगा तुम्हारे साथ इसको, हत्ता यहाँ तक कि तुम मुझको मुझसे अल्लाह की तरफ से एक पक्का वादा करो, यानी अल्लाह का नाम लेकर कसम खाओ कि अलबत्ता तुम जरूर लाओगे मेरे पास इसको, मगर ये कि घेर लिया जाए तुम्हें, यानी तुम वादा करो मुझसे तो फिर मैं जाने दूंगा। फलम्मा अतऊहु, फिर जब उन्होंने इसको पुख्ता वादा दिया अपना, तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला इस पर जो हम कहते हैं वकील है, यानी अल्लाह को गवाह बना के प्रॉमिस किया कि हाँ ले जाओ वापस लेकर आना साथ। वकाल या बनिया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, और उसने कहा मेरे बच्चों ना तुम दाखिल होना एक दरवाजे से, मगर दाखिल होना मुख्तलिफ दरवाजों से। यानी एक 11 भाई थे, खूबसूरत लंबे चौड़े, तो ये नजर लगने के हवाले से कुछ मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि नजर ना लगे, बहरहाल ये एक तफसीर है इसकी। और उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि मुख्तलिफ दरवाजों से दाखिल होना। वमा उगनी अनकुम मिन अल्लाहि मिन शै, और नहीं बचा सकता तुमको अल्लाह से किसी चीज से नहीं फैसला मगर अल्लाह का, इसी पर तवक्कल किया मैंने और इसी पर बस चाहिए कि तवक्कल करें तवक्कल करने वाले। वलम्मा दखलू मिन है, यानी उन्होंने एक तदबीर की, लेकिन साथ में कहा कि अल्लाह की तरफ से कोई चीज होनी होगी तो वो हो जाएगी, मैं नहीं बचा सकता, तवक्कल अल्लाह पे करना एक तदबीर है, ये मुख्तलिफ दरवाजों से जाना। और ये नजर को हम इतना ज्यादा अहमियत देते हैं, इतना ज्यादा अहमियत दे देते हैं कि हम अल्लाह को भूल जाते हैं। अल्लाह की रजा से ही होता है, जादू भी अल्लाह की रजा से होता है, नजर भी खुद ऐसी थोड़ी कि आपने अस्कार पढ़े हुए, आपने सब कुछ किया हुआ आपको नजर लग जाएगी। अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह ने आपको आजमाना था, उसके जरिए अल्लाह ने आपको आजमा लिया। बस ठीक है, नजर को लेके बहुत ज्यादा, फिर इतना ज्यादा हो गया है कि गलत तरीकों से नजर उतारी जा रही है, ये सब कुछ शुरू हो गया है। तो इसको हमेशा अल्लाह ताला को याद रखें। यहाँ पे भी वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह से कोई उगनी अनकुम मिन अल्लाहि मिन शै, अल्लाह से कोई नहीं बचा सकता, अल्लाह की रजा होगी तो क्या तदबीर क्या नजर सब सब बराबर हो जाएगा। वलम्मा दखलू मिन हईस, आयत नंबर 68, और जब वो दाखिल हुए जहां से हुक्म दिया गया था इनको इनके बाप ने, ना था काम आता इनको अल्लाह से कुछ भी, मगर एक हाजत थी याकूब के दिल में, इसने पूरा किया इसको, बेशक वो अलबत्ता इल्म वाला था और वास्ते इसके जो सिखाया था हमने इसको, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। तो ये तकदीर के राज है। तो उसने अपने तौर, अल्लाह ताला कह रहे हैं याकूब ने अपने तौर एक किया, तदबीर की, लेकिन तकदीर के इल्म में जो होना था तकदीर गालिब आ जाती है, तकदीर ही अल्लाह की रजा है। फलम्मा दखलू, जब वो दाखिल हुए यूसुफ पर, ठहराया अपने पास अपने भाई को, इसने यूसुफ ने बिन्यामीन को अपने पास ठहराया, और बेशक मैं ही तेरा भाई हूँ, बस ना तू रंज कर, बवजह इसके जो उन्होंने अमल किया या जो वो अमल करते थे, इन्हें अपने भाई को पास बुला के सारी बात बता दी। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, तो जब इसने तैयार किया इनको इनका सामान, इसने रख दिया पानी का एक प्याला अपने भाई के सामान में, बिन्यामीन के थैले में, जो बिन्यामीन के ऊंट का पे जो गल्ला था उसमें अपना जो बादशाह का प्याला था या उनका अपना जो प्याला था वो कीमती प्याला उसमें रख दिया। तुम अदना मुअद्दिनुन, फिर पुकारा एक पुकारने वाले ने, ए काफिले वालों बेशक तुम चोर हो। जब ये जाने लगे तो कहने लगा तुम चोर हो। कालू अकबर अलैहिम माज़ा तफकिदून, तो वो जो थे 11 भाई वो मुखातिब हुए इन पर और कहने लगे तुम्हारा क्या गुम हो गया। कालू नफकिदु सुवा अल मलिक, उन्होंने कहा हम गुम पाते हैं बादशाह का पैमाना, गल्ला नापने का बर्तन कह लें या कोई ग्लास या कास। वलिमन जा बिही हिमलु बईर, और वास्ते इसके जो इसको लाएगा यानी जो ये प्याला ढूंढ कर लाएगा कीमती प्याला, उसको एक ऊंट जितना गल्ला मिलेगा और मैं इसका कफील हूँ। यानी जिसने ऐलान किया उसने कहा मैं इनाम में दूंगा एक ऊंट गल्ला। कालू तल्लाहि लक़द अलिमतु मा जिअना लिनुफ़सिदा फिल अर्दि वमा कुन्ना सारिक़ीन, तो कहने लगे भाई उनके अल्लाह की कसम अलबत्ता तहकीक जान लिया तुमने, हम किसी फसाद के लिए नहीं आए हैं, हम चोर नहीं हैं। कालू फमा जज़ाउहु इन कुंतुम काज़िबीन, 74, उन्होंने कहा तो क्या बदला है, क्या जजा होगी अगर तुम झूठे निकले। उन्होंने कहा इसकी जजा वही है जिसके सामान में गल्ला प्याला मिलेगा, क्योंकि जो
फलस्तीन में या किनान में जो रूल था वो यही था, चोरी जो करेगा तो जिसने चोरी की वो उस बंदे का गुलाम बन जाएगा जिसकी चोरी हुई। तो उन्होंने यही बात अपना कानून बता दिया। बादशाह के कानून में ये था कि उसको मारपीट होगी। तो इसीलिए हजरत यूसुफ ने प्याला रखवाया उसके बिन्यामीन के गले में, ताकि बिन्यामीन के गले से प्याला निकले तो बहैसियत गुलाम उसको अपने पास रोक सके, वरना रोक तो नहीं सकते थे। और ये अल्लाह ने उन्हें तदबीर सिखाई। कदालिक नज़ीद ज़ालिमीन, इसी तरह हम बदला देते हैं जालिमों को। यानी उनके भाई बता रहे हैं कि हम अपने हमारे मुल्क में यही कानून है। फबदा बिअउइयतिहिम, तो वो शुरू हो गया इनके थैलों के साथ, यानी तलाशी करने वाला, ऐलान करने वाला तलाश करने लगा। पहले थैले में अपने भाई के, फिर निकाल लिया इसको अपने भाई के थैले से, बिनियामीन के थैले से वो प्याला निकल आया। कदालिक किदना ली यूसुफ, अल्लाह ताला फरमा रहे इसी तरह हमने तदबीर की यूसुफ के लिए। अल्लाह ताला ने अपने लिए इसको मखसूस किया कि पैगंबर कभी झूठ नहीं बोलता, पैगंबर इस तरह चाल नहीं चलता। अल्लाह ताला ने उन्हें ये तदबीर बताई थी कि यूसुफ तुमने हालात के मुताबिक ये तदबीर करनी है। ठीक है, इसको जहन में रखिए, इसलिए बताया बताया जा रहा है बकायदा कुरान में। मकान अली याखुदा अखाहु फी दीनिल मलिक, नहीं था मुनासिब कि ले ले अपने भाई को बादशाह के दीन के मुताबिक, यानी बादशाह के दीन में तो फिर मारपीट ही होनी थी। इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि चाहता है अल्लाह। नरफउ दरजाति मन नशा, हम बुलंद करते हैं दर्जे में जिसको हम चाहते हैं, और ऊपर हर इल्म वाले के एक इल्म वाला है। 77। कालू यसरिक, उन्होंने कहा अगर इसने चोरी की, अब भाई क्या कहते हैं, अगर ये बिन्यामीन ने चोरी की, फकत सरका कुल्लहु मिन कब्ल, तो इसके भाई ने भी इससे पहले चोरी की थी। यानी फौरन हजरत यूसुफ के हवाले से बात करने लगे। असर रहा यूसुफ भी नफसी, तो छुपा लिया इस बात को यूसुफ ने अपने दिल में। ये जो ब्लेम डाला ना, ये दूसरों पर ब्लेम डालना, आपको पता है ये कमजोर लोगों का होता है रवैया, तो इखलाक का गिरे होने की निशानी है ये। तो इस बात को हजरत यूसुफ को बहुत बुरी लगी ये बात, लेकिन अपने नफ्स में दबा गए। वलम युब्दी लहा लहुम, और नहीं जाहिर किया इसको इनके लिए। काला अंतुम शर्म मकाना, दिल ही दिल में कहने लगे तुम तो बहुत ही बुरे हो मकान के एतबार, यानी इखलाक के बदतरीन दर्जे पे। अभी तुम मुझे छोड़कर आए कुएं में, अभी भी मेरे लिए ऐसी बातें कर रहे हो पब्लिक में। वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून, और अल्लाह खूब जानता है साथ इसके जो तुम बयान कर रहे हो। आयत 78। कालू या अय्युहल अजीज इन्ना लहू अब्बन शेखन कबीरा, तो कहने लगे ए यूसुफ, ए अजीजे, मतलब अजीज, अजीज यूसुफ को मुखातिब करके कह रहे हैं, बेशक इसका बाप बड़ा बूढ़ा है, बस ले ले हम में से किसी एक को इसकी जगह। इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, हम आपको देखते हैं मोहसिनीन में से। यहाँ फिर सिफ्त आ रही है हजरत यूसुफ की मोहसिनीन के तौर पर, ये इखलाक के बुलंद दर्जे पे थे वो। काला माजल्ला, हजरत यूसुफ ने कहा खुदा की पनाह, पनाह अल्लाह की पनाह, कि हम बचा हम ले मगर इसको जिसके पास पाया हमने अपने सामान। इन ज़ालिमून, अगर हम ऐसा करें तो हम तो जालिम होंगे। फलम मस्तयअसू मिन्हु खलसू, फिर जब वो मायूस हो गए, यानी क्योंकि वादा कर कर आए थे ना अपने बाप के साथ कि बिन्यामीन को वापस लाएंगे। पहले तो अजीज से बात की, हजरत यूसुफ से बात की, हजरत यूसुफ ने इनकार कर दिया, अब अकेले बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। फिर जब वो मायूस हो गए इससे, अकेले बैठे सरगोशियां करने लगे। कहा इनके बड़े ने, क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे पक्का वादा लिया था अल्लाह के नाम से, और इससे पहले जो कोताही की तुमने यूसुफ के मामले में, तो हरगिज मैं नहीं टलूंगा इस जमीन से, यहाँ तक कि इजाजत दे दे मुझको मेरा बाप, या फैसला कर दे अल्लाह मेरे लिए, और बेहतरीन फैसला करने वाला है। कहा जाता है ये यहूदा था बड़ा बेटा, ये वही था जिसने कहा था कत्ल नहीं करो, किसी कुएं में डाल दो। तो ये इसने कहा कि मैं तो अपने बाप को मुंह नहीं दिखा सकता, मैं यहीं मिस्र में ही रुकूंगा, तुम जाओ, अल्लाह ही मेरा मामला हल करेगा। इरजिउ इला अबीकुम, लौट जाओ अपने बाप की तरफ, फिर कहो है हमारे अब्बा जान, बेशक तेरे बेटे ने चोरी की और हमने देखा नहीं, मगर जो हमको मालूम हुआ, और नहीं है हम गैम के लिए हिफाजत करने वाले। और पूछ लो बस्ती वालों से वो जो थे हम, और इसमें से अहले काफिला से वो जिसके साथ हम आए थे। और इन्ना लसादिकुन, और अलबत्ता हम सच्चे हैं। उन्होंने कहा जाके अब्बू को बोलो, अब्बू हमें नहीं पता, हमने देखा नहीं, लेकिन इसने चोरी की है, और आप हम इस अब कोई हम झूठ नहीं बोल रहे, अब सही बात कर रहे हैं ना। पहले तो बिदमिन कजिब के साथ आ गए थे कुर्ते में लगाकर, अब कहते हैं आप काफिले वालों से पूछ लें जिनके साथ हम कहते हैं ये मामला हुआ है, या बस्ती वालों से पूछ लें, या मिस्र आके खुद छानबीन कर लें। काला बल सवलत लकुम लकुम अनफुसकुम अमरा, अब दोबारा वही बात हजरत याकूब कहते हैं कि बल्कि आसान कर दिए तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों ने एक काम को, तो सब्र ही अच्छा है। उम्मीद है कि अल्लाह ले आएगा मेरे पास इनको सबके सबको, क्योंकि वो इल्म वाला हिकमत वाला है। तीन बेटे अलग हो गए, सबके सब वापस आ जाएंगे। वो कहते हैं पता वल्ला अनहुम, और इसने मुंह फेर लिया इनसे और बोला या सफा अला यूसुफ, हाय अफसोस यूसुफ पर, और सफेद हो गई इनकी दोनों आंखें गम की वजह से, और वो सख्त गमगीन थे। कालू तल्लाही तफ्ताउ तज़कुरु यूसुफ, उन्होंने कहा, जो उनके इर्द गिर्द बच्चे थे उनके, कहने लगे कसम अल्लाह की तुम तो हमेशा यूसुफ को याद करते रहते हो, यहाँ तक कि तुम बीमार हो जाओगे या बेकार हो जाओगे या हलाक ही हो जाओगे। अब या तो वो अफसोस में कह रहे हैं या बदतमीजी में गुस्से में कह रहे हैं। काले नम अशकु बस्ती व हुज़नी इलल्लाह, हजरत याकूब ने कहा कि बेशक मैं शिकायत करता हूँ अपनी परेशानी और अपने गम का अल्लाह की तरफ। वह आलम मिनल्लाहि मा ला तालमून, और मैं जानता हूँ अल्लाह से जो तुम नहीं जानते। यानी अशकु बस्ती व हुज़नी इलल्लाह, शिकवा अल्लाह से ही करना चाहिए। दुनिया में भी ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा हम पढ़ते हैं ना, कि अल्लाह पसंद नहीं फरमाता बुराई की बातों को बयान करना कुल्लम कुल्ला। तो जब परेशानी कोई हो तो अल्लाह से ही कहे। शिकवे से मुराद ये शिकवा नहीं है अल्लाह तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, शिकवे से मुराद है
अपनी परेशानियां, अपने गम, अपने मसाइल अल्लाह के सामने रखना। इसको ये कर रहे हैं ना वो कह रहे मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा, मैं यूसुफ को याद करूं, मैं अकेला रो रहा हूँ, तो मैं तो अल्लाह से शिकवा कर रहा हूँ, अल्लाह से डिस्कशन कर रहा हूँ। तो यहाँ फरियाद के मायने हैं, ठीक है। या बुनैया धबू फतहस्ससू मिन यूसुफ, ए मेरे बच्चों पर टोह लगाओ यूसुफ की और इसके भाई की, और मायूस ना होना अल्लाह की रहमत से, क्योंकि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते सिवाय काफिर कौम के। आयत 88। फलम्मा, तो जब दाखिल हुए इस पर कहने लगे ए अजीज, अब वापस वो मिस्र आते हैं। फिर जब वो जाते हैं उनके पास, हजरत यूसुफ के पास, तो वो कहते हैं ए अजीज मस्सना व अहलना दुर, पहुंची हमको और हमारे घर वालों को तकलीफ, और लाए हैं हम हकीर सी पूंजी। फाउफी लनल कैल, यानी अब जो पैसे लेकर आए, भूख की शिद्दत, तकलीफ से मुरादी यानी शदीद शहद कहत चल रहा है, भूख भी है। अब हम गल्ला खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। फाउफी लनल कैल, तो हमको पूरा पूरा गन्ना दे दो, और तसद्दक लेना, हमें सदका कर दो, यानी और भी दे दे, भाई को भी साथ भेज दे। सदका इजाफी को कहते हैं ना, तो या तो भाई भी साथ भेज दें, या पैसे हमारे कम है, हमें गल्ला ज्यादा दे दें। मतलब अब भीख मांगने की हालत हो गई उनकी उसी यूसुफ के आगे जिस यूसुफ को उन्होंने कुएं में डाला था। इन्नल्लाह यज्जिल मुतसद्दिकीन, बेशक अल्लाह जजा देता है सदका करने वालों को। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ व अख़ी, हजरत यूसुफ बोले क्या तुमने जानते हो तुमने क्या किया था यूसुफ के बारे में और इसके भाई के, यूसुफ के साथ इसके भाई के, जब तुम थे लाइल, यानी अब उन्होंने क्लू दे दिया। कालू इन्नका लअंता यूसुफ, तो भाई कहने लगे क्या बेशक तुम ही यूसुफ हो। काला अना, हजरत यूसुफ ने कहा हाँ मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है बिन्यामीन। कद मन्नल्लाहु अलैना, तहकीक अल्लाह ने एहसान किया हम पर, बेशक वो जो तकवा इख्तियार करे और सब्र करे, तो यकीनन अल्लाह ताला नहीं जाहिर करता अजर मोहसिनीन का। तकवा, सब्र, एहसान, सब यही चीजें हजरत यूसुफ के वाले से आ रही है। क़ालू तल्लाहि लक़द आथरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातिईन, भाइयों ने कहा कसम अल्लाह की, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने तुझको तरजीह दी हम पर, और बेशक हम ही खताकार में से हैं। वी वर रॉन्ग, कबूल कर लिया। क़ाल ला तसरीब अलैकुमुल यौम, हजरत यूसुफ ने कहा कोई इल्जाम नहीं है तुम पर आज, माफ कर दे अल्लाह तुमको, और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। ठीक है, एक तरह से माफ कर दिया। इधर भी कमीथी हादा, ले जाओ मेरी कमीज को, इसको, फालकूहु अला वजही अबिय्याति बसीरा, फिर डाल दो इसको मेरे बाप के चेहरे पर, वो उनकी बिनाई वापस आ जाएगी, और ले आओ मेरे पास अपने घर वालों को, सबके सबको। फलम्मा फसलतिल ईरु, और जब जुदा हुआ काफिला, मतलब यहाँ मिस्र से अब रवाना हुए, माफी मिल गई है और कुर्ता भी दे दिया है कि अब्बू के चेहरे पर डाल देना। तो जब जुदा हुआ काफिला, इनके बाप ने कहा कि बेशक मैं यूसुफ की खुशबू पाता हूँ, अगर तुम मुझे बहका हुआ ना कहो। यानी उनको महसूस हो रही थी, खुशबू आ रही थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, कहते हैं मैं यूसुफ की खुशबू पाता हूँ। फलम्मा अनजा अल बशीर, फिर जब आ गया खुशखबरी देने वाला, ये फिर अगेन बशीर यहाँ मुराद वही बड़ा बेटा यहूदा। अलकाहु अला वजही फर्तद्दा बसीरा, इसने डाला इसके चेहरे पर, कुर्ता डाल दिया अपने बाप के चेहरे पर, तो उनकी बिनाई वापस आ गई। क़ाला अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, हज़रत याकूब ने कहा कि मैंने नहीं कहा था तुमसे कि बेशक मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते। क़ालू या अबाना अस्तगफिर लना दुनूबना इन्ना कुन्ना खातिईन, बेटे कहने लगे "ऐ हमारे अब्बाजान हमारे लिए बख्शिश मांगे, बेशक हम ही खताकार थे। क़ाला सौफ़ा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, कहा अनकरीब मैं बख्शिश मांगूंगा तुम्हारे लिए अपने रब से। तो औलाद के हक में वालिदैन की दुआ कबूल होती है, वालिदैन से करवानी भी चाहिए, बाकायदा फोन करके उनको कहना चाहिए अगर आप दूर रहते हैं, अम्मी मैं ये काम करने लगी हूँ, मेरे लिए दुआ करें। किसी सफर पे निकले हैं, उम्रे पे निकले हैं, वैसे ही किसी सफर पे निकले हैं, कहीं इंटरव्यू के लिए जाएं, स्पेशली घर के बड़ों को फोन करें। अम्मी अबू दुनिया से जा चुके हैं तो बड़े भाई मौजूद होगा, कोई बड़ी बहन मौजूद होगी, फोन करके जरूर कहना चाहिए। एक तो उनकी रिस्पेक्ट है इसमें, उनकी इज्जत है इसमें, और दूसरा ये दुआएं कबूल होती हैं। फिर तीसरी चीज ये है कि रमजान का महीना आ रहा है, जिनके पेरेंट्स नहीं है तो उनके कोई चचा चची मामू मामानी जो जो भी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, यानी अम्मी की बहन और अब्बू के भाई, तो अब उनके लिए आप कोशिश करें रमजान में उनके लिए अब सूट उनका बना सकें, कोई जिसकी जितनी हैसियत है, एक सूट, एक कोई छोटा सा कोई पर्स ले लें, या कोई हैंड बैग, साथ कोई चूड़ी लेना है वो लेने, और एक साथ में का जिसकी जितनी हैसियत है, ईद के हिसाब से आपकी वालदा होती तो आप उनके लिए भी करती, तो आप उनके लिए भिजवाएं कुछ चीज, या खुद खरीदें, देकर आए, मिलकर आए। रिस्पेक्ट देना इन रिश्तों को, क्योंकि ये भूल जाते हैं जब अम्मी अब्बू का इंतकाल हो जाता है तो रिश्ते बहुत दूर हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है रमजान का, ईद के लिए उनको जरूर कुछ देकर आए, और दुआओं में उनको याद रखें, उनसे कहा करें दुआ करेंगे। किसी को पूछ लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, उनके पास कमी नहीं होगी, जो आप सूट देकर आएंगे वो लाखों करोड़ों का नहीं होगा, लेकिन किसी को पूछ लेना, ये मोहब्बत है, बस ये मोहब्बत है। क़ाला सौफ़ा अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, इसके बारे में दोनों राय मिलती है आयत नंबर 98 के बारे में, कि उन्होंने माफ कर दिया या उनके दिल में भी तकलीफ थी तो उन्होंने कहा ठीक है सौफा अनकरीब में बख्शिश मांगूंगा तुम्हारे लिए। फलम्मा दखलू अला यूसुफ, तो जब वो दाखिल हुए यूसुफ के, उन्होंने बिठाया अपने वालिदैन को अपने पास और कहा दाखिल हो जाओ शहर में, अगर अल्लाह ने चाहा
यानी मिस्र की रेजिडेंसी अब आपकी हो गई, सिटीजनशिप मिल गई, आ जाए आप यहाँ अमन के साथ रहें। वरफा अब वही अलल अर्श, ऊपर बिठाया अपने वालिदैन को तख्त पर, यानी जिस तख्त पर हजरत यूसुफ बैठते थे अपने अम्मी अब्बू को वहां बिठाया। वखर्रू लहू सुजदा, और वो सब गिर पड़े इसके लिए सजदा करते हुए, यानी ये सजदा ताजीम था जो पहले शरीयत में होता था अब नहीं है। वकाला या अबती हाज़ा तावीलु रुइया मिन क़ब्ल, और कहा है मेरे अब्बा जान ये ताबीर है मेरे ख्वाब की जो मैंने पहले देखा था। क़द जअलहु रब्बी हक़्क़ा, तहकीक बना दिया इसको मेरे रब ने सच्चा। तकरीबन 40 से 80 साल का फासला था ख्वाब और उसकी ताबीर के दरमियान। ठीक है, तो सारे भाइयों ने, 11 भाई और 10 भाई और ये, नहीं 11 भाई और ये वालिदैन सब ने सजदा किया। वक़द अहसन बी इद अखरजनी मिन सजनी वजा सिजनी वजा अबिकुम मिन बदवी मिन बादी अन नज़ग़ शैतानु बैना बैनी व बैन इख्वती, और तहकीक अल्लाह ने एहसान किया मेरे साथ जब इसने निकाला मुझको जेल से और ले आया तुमको जंगल से। इसके बाद के वसवसा डाला शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान, यानी भाइयों ने जो काम किया वो इतने मोहसिन है कि वो कह नहीं रहे, उसको शैतान से मंसूब कर रहे हैं। वसवसा तो डाला शैतान ने लेकिन काम तो भाइयों ने किया था ना। इन्ना बेशक मेरा रब बारीक बीन है वास्ते इसके जो वो चाहता है, बेशक वो अलीम और हकीम है। आयत 101। रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तावील अहादीस, ए मेरे रब तहकीक दिया तूने मुझको बादशाहत में से और सिखाया मुझको ख्वाबों की ताबीर में से। पैदा करने वाला है आसमानों और जमीन का। अंत वली फिर दुनिया वल आखिरत, तू मेरा दोस्त है दुनिया में और आखिरत में। तू फौत कर मुझको इस्लाम की हालत में, वालिहिक्नी बिस्सालिहीन, और मिला दे मुझको साले लोगों के साथ। बेहतरीन दुआ है आखिरत जो है खात्मा बिल खैर की। यह अंता वली फिर दुनिया से पहले आप अल्लाहुम्मा लगा सकते हैं, अल्लाहुम्मा अंता वली फिर दुनिया वल आखिरत तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। तर्जुमा भी इसका याद करें और ये लाजिम रोज पढ़े बंदा दुआ। हमें नहीं पता जिस वक्त हम मौत का रिश्ता नजर आए हम क्या काम करेंगे, अल्लाह की फर्मा बरदारी का या नाफरमानी का। तो जिस हालत में बंदा जिंदगी गुजारता है उसी हालत में मौत आती है और उसी हालत में उठाया जाएगा। तो ये हम जो है जरूर ये दुआ पढ़ा करें। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, आयत 102, ये गैब की खबरों में से है, हम वही करते हैं आपकी तरफ और ना थे आप इनके पास जब इत्तेफाक किया उन्होंने अपने मामले पर और वो चाले चल रहे थे। किसकी बात हो रही है? इखवानी यूसुफ की बात हो रही है। वमा अक्सर उन्नासी वलौ हरस्ता बिमुमिनीन, अब ये जो किस्सा सुनाएगा ना ये वाकई सिर्फ तौरात में थे वाकयात, और वो भी सिर्फ यहूदी चंद उलमा के पास थे। तो ये एक तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चा रसूल होने की गवाही भी बने। वमा अक्सर उन्नास वलौ हरस्ता बिमुमिनीन, और नहीं है अक्सर लोग हरीस, अक्सर लोग ख्वाह मोहम्मद तुम हरीस हो जाओ ईमान लाने वाले। ठीक है। वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अजर, आयत नंबर 104, और नहीं तुम सवाल करते इस पर किसी अजर का, नहीं है वो मगर एक जिक्र सारे जहान वालों के लिए। वकाइय मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्द, और कितनी ही निशानियों में से आसमानों और जमीन की वो गुजरते हैं इन पर और वो इनसे मुंह मोड़ने वाले हैं, और नहीं है ईमान लाते इनमें से अक्सर अल्लाह के साथ मगर वो शिरक करने वाले हैं। तो एक तो बिल्कुल ही मुंह मोड़ जाते हैं जैसे इथियस्ट हैं, वो कहते हैं अल्लाह और या गॉड कोई नहीं होता, और एक है जो मानते हैं अल्लाह को लेकिन वह हम मुशरिकून, ये दूसरी क्लास है। दुनिया में 3 ही क्लास है ना, एक तो अल्लाह के इनकारी है या कहते हैं अल्लाह है नहीं है, ठीक है, एग्नोस्टिक जो होते हैं, एक ये ग्रुप है। एक मोमिनीन का ग्रुप है हमारा, और एक उनका ग्रुप है जो अक्सर ईमान लाते हैं साथ दूसरों को भी मिला लेते हैं, बुत है या कोई इंसान है, जो क्रिश्चियन है जैसे। अफामीन उन तातिया मुगाशिया, क्या भला वो बेखौफ हो गए क्या इनके पास एक ढांप लेने वाली, यानी पानी आ जाए, आंधी आ जाए, रेत आ जाए, जलजला, मौत आ जाए, मिन अजाबिल्लाह, अल्लाह के अजाब से, या आए इनके पास कयामत की घड़ी अचानक और वो शऊर ना रखते हो। 108। कुल हाजिही सबीली अदू इल्लाह, कह दीजिए ये रास्ता मेरा है, मैं बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ बसीरत के साथ। और जो कोई मेरी पैरवी करे, यानी होश, हवास, दलील, दीन की दावत कोई रस्मी बात नहीं है, आला बसीरा करनी पड़ती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वैसे की, और जो उनकी पैरवी करें, जो हम में से कोई काम करे तो दलाइल के साथ नबूवत की तबलीग की बात करें। हवाई बातें, किस्से कहानियां नहीं करें। किस्से कहानियां बहुत है ना, आप देखिए मजे आते हैं लोगों को इस तरह की गैदरिंग में बैठने से। वो सुभानअल्लाह, और पाक है अल्लाह। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजाला, और नहीं भेजा हमने आपसे पहले मगर मर्दों को, हम वही करते थे इनकी तरफ बस्ती वालों में से। क्या फिर नहीं वो चले फिरे जमीन में तो वो देखते किस तरह हुआ अंजाम इन लोगों का इनसे पहले। और अलबत्ता घर आखिरत का बेहतर है इन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। 110। हत्ता इज़ा इस्तयअसर रसूल, यहाँ तक कि जब मायूस हो गए रसूल और उन्होंने समझ लिया कि बेशक वो झूठ बोले गए हैं, यानी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जा हम नसरूना, आ गए इनके पास हमारी मदद, किसके पास? पैगंबरों के पास। फनुज्जी अमन नशा, तो बचा लिया हमने जिसको हमने चाहा, और नहीं फेरा जाता अजाब हमारा मुजरिम कौम से। आयत 111। लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतन लिउलिल अलबाब, अलबत्ता तहकीक इन किस्सों में इबरत है अक्ल वालों के लिए। नहीं है ये कुरान जो घड़ ली गई, लेकिन तस्दीक है इस चीज की जो इससे पहले है, और तफसील है हर चीज के लिए, और हिदायत है और रहमत है लिकौमी
युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान लाती हो। असल चीज ईमान लाना है। कुरान को हक समझेंगे, इम्पोर्टेंट समझेंगे, अहमियत देंगे तो पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो यही ईमान लाने का तकाजा है। उस पर अमल करना, उसको समझना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे कबूल फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।